Ashutosh ji, I am audible? Yes, sir. Okay. Very good morning, everyone, and very warm welcome to all the members of Tax Bar Association Jodhpur. Hopefully, all TBA members are safe and at home. TBA Jodhpur committee has thoughtfully covered all aspects of its profession and well-being of its member. For well-being of its member, it has already conducted webinars on stress management and awareness about COVID-19. And for professional webinars, it has already covered topics on GST, income tax, company law. And today we have seminar on recent amendments in GST, customs and DGFT. And going forward, we will have few more webinars on income tax and TDS related matters. So today we have with us very learned speaker. To welcome him, I request our TBA President, Shri Vishnu Prasad Ji Daga, to welcome our today's Guru, our learned speaker, Shri Pradeep Ji Jain. Over to you, Daga Ji. Thank you, Rohit. Am I audible, Rohit? Yes, sir. Rohit, I am audible? Yes, yes. Thank you, Rohit, very much. Good morning, all of you. Respected Shri Pradeep Jain Sahab, today's learned speaker, MOC CA Ashutosh Sharma and his entire team, Rohit Jain and Ankit Malani, Secretary Tax Bar Association, Raj Bothra, all my professional brothers and sisters. Friends, it is immense pleasure to state that on the basis of feedback received from our members at large, we member of Executive Committee of Tax Bar Association Jodhpur decide to introduce 4 more series of webinars as explained by MOC Rohit, which has been started from 27th April on the topic company law audit reports by our young member CA Lucky Nanmani. It was also very much appraised by our members, which got motivation to our young speaker. Friends, today's topic of webinar is recent amendment in GST, custom and DGFT, very important. Respected Sri Pradeep Jain Sahab are going to deliberate his deliberation on this topic. Our today's learned speaker, Sri Jain Sahab, is known as GST expert and a renowned faculty of not only our city but also all over the state. With our presenter for the days comes with a wealth of knowledge in indirect taxation laws, having experience of more than 26 years since 1994. He is also the author of book titled A Comprehensive Guide to GST for Exporters. He has spoken in various seminars held on indirect taxation during budget and other seminar on GST for ICI chapter, Tax Bar Association Jodhpur, All India Tax Federation and various trade and industries association at all over Rajasthan and Ahmedabad. Sir, I welcome you on behalf of all the member of Tax Bar Association Jodhpur by virtually garlanding to you. I know each one of us is going to be benefited immensely with your session. Friends, our next webinar will on 1st May. Shri Amisha Kothari Shah will learned speaker on the topic issue on taxation of income tax under business and profession head. Thanking you all for active participation. With this, I hand over the command to Mr. Rohit. Please, Rohit. Thank you, sir. As per tradition of TBA, we always seek blessings. So I request everyone to bow down to Goddess Saraswati and pray that she will enlighten us with more knowledge. With these words, I hand over the mic to Shri Pradeep Ji Jain. Thank you, Rohit sir. Thank you very much for the kind words, Shri Daga Sahab, President Tax Bar Association, as well as I am very thankful to you. This topic, recent amendments in GST,
DGFT and this customs. First, I hope all are safe and secure, and I think Rohit sir, I am audible. Rohit sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. So we will be first taking up the this GST first, very first, and thereafter we will be taking up custom and DGFT. The language will be, for the benefit of the members, the language will be mixed English plus Hindi, so that everybody can understand the things properly. First of all, we will go to this for one. This is first of all, we will take up the GST part. Before moving my discussion on DGFT, first of all, we have notified the latest amendment which has come in day or two. तो सबसे पहले जो है GSTR 3B जो है for the companies it has to be filed with the DSC. You all know it has to be filed with the DSC. So now a provision has been done कि भी EVC से भी companies के लिए GSTR 3B file हो सके, because that was a demand from trade and industry that all the digital signatures are lying with in the office and nobody can go in the lockdown position to the offices. That's why the companies are unable to file the returns. So एक ये utility दी गई है कि भाई वो लोग जो है उसको ये जो है EVC से भी ये फाइल कर सकते हैं. तो second is PMT 09. Everybody knows that अगर हमने कोई टैक्स पे कर दिया है, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे कर दिया है, जैसे अगर हमने CGST में, SGST में या IGST में पे कर दिया है, और जबकि हमें पे करना था C और S में, I में पे कर दिया और C और S में पे करना था, या इंटरेस्ट में पे कर दिया और उसको टैक्स की तरफ एडजस्ट करना था, तो वो पहले ये यूटिलिटी नहीं थी कि भाई हम इसको चेंज कर सके. Now it has been provided that we can shift from one major head to minor head also. So this PMT 09 facility has been given. So you can the amount once utilized and removed from cash ledger cannot be reallocated. So major head refers to IGST, CGST and SGST, or minor head refers to interest, tax or fees or anything else. So we can shift from one by filing PMT 09, we can shift our this amount from in electronic cash ledger from IGST to CGST, SGST और vice versa. तो किसी तरह से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये जो है अपने को किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग इन करना है GST पोर्टल पे, देन क्लिक ऑन सर्विसेज, देन क्लिक ऑन लेजर्स. सो क्लिक ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. Sorry. When we click on electronic cash ledger, then after clicking on second option GST PMT 09, you have to click on second option. There are three options: electronic cash ledger, GST PMT 09 and view file GST PMT 09. When you click on the second option GST PMT 09, so it will allow you to transfer the amount as in shown in the first screenshot. There are transfer amount from, transfer amount to, so you can shift your amount this. हालांकि ये जो ऑप्शन दिया गया है PMT 09 के भी आप ये अमाउंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, परंतु जो नॉर्मली ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने ये डिमांड की थी कि भाई आप एक कॉमन पोर्टल पे रख दो, कैश जो भी डिपॉजिट करें वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाए, फिर हम उसको किसी भी हेड में यूज करना चाहें उसमें कर सके. परंतु वो जो डिमांड है वो तो पूरी नहीं हुई, परंतु PMT 09 एक नई फैसिलिटीज आ गई है जिससे अपन इस पे कर सकते हैं. Now next is there is a personal hearing, virtual person hearing, webinar हम कर रहे हैं and we are doing personal everything. Now next thing is, if you are any show cause notice has been issued and you are allowed to this
1 minute. So if you are allowed and you have to file the show cause notice reply also, तो जो पर्सनल हियरिंग है वो भी वर्चुअल मोड में हो सकती है. इसका एक इंस्ट्रक्शन भी इशू हुआ है, कल ही इशू हुआ है. तो CBA has asked the field formality to conduct hearing in custom, excise and service tax appeal via video conferencing. तो दिस वुड, परंतु उसका जो भी आपको सिस्टम है इंटरनेट वगैरह वो आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसके बाद आप पर्सनल हियरिंग दे सकते हैं. तो प्रोसीडिंग जो है अपीलेट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कोई भी उसको आपको ऑनलाइन रह के इसकी पर्सनल हियरिंग भी कर, दैट इज ए वेलकम स्टेप. एंड वी आर आल्सो डिमांडिंग कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पर्सनल हियरिंग्स वाया वर्चुअल मोड हो रही है, तो इसी तरह से CSTAT में भी और इस जो प्रोसीडिंग्स इसकी भी हो जाए, तो ये अलाउ कर दिया गया है और अब हो जाएगा. इसमें भी एक नेक्स्ट जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर हैं, उसके ऊपर आप बनाते हैं. तो जो 16/2020 एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था 23 मार्च को, उसमें रूल 8, 9 और 25 में अमेंडमेंट हुआ. नाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज मेड मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन. और आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपका नहीं होता है तो देयर विल बी फिजिकल वेरिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिसर. तो हमें ये ध्यान रखना है कि भी आधार ऑथेंटिकेशन अब कंपलसरी है और वो जो है उसका जो प्रिंसिपल ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके आधार ऑथेंटिकेशन होगा. नाउ नेक्स्ट इज रूल 43 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC. दिस वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल 43 विद द डैशबोर्ड. 1 minute. Suppose I have purchased a machine for ₹1 lakh, on which 18,000 GST is paid, and at that time I am manufacturing only fully exempted goods, so I was not allowed to take the credit. After 1 year I have started taking manufacturing both the goods, taxable as well as exempted. So if I have started that 6 months, so 5% depreciation is allowed. So 5% depreciation means 6 months means there is depreciation of 10%. So 1800 rupees is depreciation. So rest amount is 16,200. Now since I am manufacturing exempted as well as taxable goods, so we have to proportionately reversal under this rule 42 or 43. So 16,200 divided by, earlier we were doing 16,200 divided by 16 multiplied by exempted goods upon total turnover. This we were doing it. But now what will be done? अब क्या होगा? 18,000 divided by 60 multiplied by exempted into total turnover upon total turnover. So this is the new change. Earlier we were doing a 1600 divided by 60 multiplied by exempted into upon total turnover, but government says it has to be on 1800, and this is 18,000. This is also good because पहले जो हम करते थे 16,200 पे रिवर्सल कर रहे थे वो गलत था, क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने 18,000 पूरा लिया है और उसने रिवर्सल करना है तो वो 18,000 डिवाइडेड बाय 60 इनटू एग्जम्प्टेड अपॉन टोटल टर्नओवर ही मंथली बेसिस पे करेगा. पर इसमें भी किया गया, और इसमें एक अमेंडमेंट और किया गया कि 18,000 आपको पूरा क्रेडिट लेना है और जो 16 जो रिवर्सल करना है 1800 रुपीज वो आपको जाके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना है. ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन होगी अगर लॉ कहता भी है कि भाई अपन को आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना है. मेरे हिसाब से इसको अपन ये कर सकते हैं कि भाई इसको एग्जम्प्टेड में से लेस कर सकते हैं, मतलब अपन रिवर्सल में दिखा सकते हैं, रिवर्सल अंडर रूल 42 43. तो 1800 रिवर्सल में दिखा दीजिए, 18,000 क्रेडिट ले लीजिए और hence onward हर मंथ 18,000 divided by 60 into exempted goods अपन टोटल टर्नओवर करते हुए इसका रिवर्सल हर महीने अपन 42 43 के हिसाब से करते रहेंगे. सो दिस इज द अमेंडमेंट कि भाई ये जो है 16,000 ऑब्लिक 16 नहीं करना है, 18,000 ऑब्लिक 60 करना है.
नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन रूल 80। इसमें 9C जो अपन फाइल करते थे 2018-19 में, उसकी लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी, परंतु पहले जो थी वो 17-18 में 2 करोड़ तक के एसएससी को फाइल करने की जरूरत नहीं थी। नाउ ऑनवर्ड्स 9C में 5 करोड़ तक के एसएससी को फाइल करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज 86। तो रूल 86 एंड 92 जो नीचे दिया गया है, उन दोनों में ये जो बदलाव हुआ है उसमें ये है कि भाई क्रेडिट लेजर जो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करते हैं, तो उसमें अब जो रिफंड मिलेगा, सपोज आपने कोई अमाउंट पे कर दिया, एक्सेस पे कर दिया, जैसे आपने CORS में पे करना था, आपने IGST में पे कर दिया और आप उसका रिफंड लगाते हैं, तो वो रिफंड हम मानते थे कि भाई हमने एक्सेस पे कर दिया तो हमें रिफंड मिले, तो पर उन्होंने ये कहा कि भाई इसको जो है हम पूरा कैश में नहीं देंगे, जितना प्रपोर्शन में आपने क्रेडिट और जितना प्रपोर्शन में कैश पे किया है, उन दोनों के प्रपोर्शन में ये वापस रिफंड मिलेगा, बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई जो पूरा कैश नहीं ले जाए एसएससी। परंतु मेरा ये कहना है कि जब हमने कोई अगर अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो जो लास्ट में, सपोज मेरी लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की और मेरे पास क्रेडिट पड़ा था 80,000 का, 20,000 मेरे को कैश पे करना था, एंड बाय गलती से मैंने 40,000 रुपए कैश में पे कर दिया और प्लस उसको यूटिलाइज भी कर दिया, तो आई पेड 20,000 एक्सेस विच इज इन कैश ओनली, तो कैश में ही मिलना चाहिए, बट वो कहते हैं कि इसको प्रोपोर्शन में देंगे कि भाई 60, जैसे 60% आपका क्रेडिट से था, 40% आपका कैश में था, तो 60 आपको क्रेडिट में वापस मिलेगा और 40% वो ले लेगा। तो दैट इज नॉर्मली दैट हैज बीन क्रिएटेड, बट हमारे हिसाब से तो उसको कैश में ही देना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इज रूल 89। रूल 89 में क्या है, वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अपन जो प्रोपोर्शनेट रिफंड लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, तो उस पे उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है। उन्होंने कहा कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, दैट विल बी 1.5% वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। Suppose if you are exporting also and you are selling in the domestic market also, and the value of your goods in domestic market is 100 rupees and you are exporting at 200 rupees in export market, but जो refund की calculation के लिए value ली जाएगी, that will be 1.5% only of the domestic goods. So 100 into 1.5, it is equal to 150. So 150 value of export goods ली जाएगी, and on that basis आपका जो है कैलकुलेशन होगा और वो रिफंड आपको मिलेगा। दैट इज अगेन ए बिग प्रॉब्लम, व्हाई दे आर गोइंग फॉर 1.5%, व्हाई नॉट 2 टाइम्स, व्हाई नॉट 3 टाइम्स। तो और रूल में अमेंडमेंट कर दिया है, देयर इज नो प्रोविजन इन द सेक्शन, सो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द सेक्शन एक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अल्ट्रा वायरस। और थर्डली एक जो ऑथर ने सही भी कहा है कि इसमें क्या किया गया कि जो एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू को ही चेंज किया गया है, परंतु जो टोटल टर्नओवर है, हमें रिफंड कैसे मिलता है, क्रेडिट टेकन इन दैट पर्टिकुलर मंथ डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर एंड मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। बट नोमिनेटर जो टोटल टर्नओवर है, दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, उसकी जो डेफिनेशन है दैट हैज नॉट बीन चेंज। तो नोमिनेटर तो पूरा वैल्यू ऑफ टोटल टर्नओवर ही रहेगा, परंतु जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है वो 1.5 हो जाएगी। तो इवन 100% मैं एक्सपोर्ट करता हूं और मेरा सिर्फ एक सेल है, सिंपल एक सेल है उस गुड्स की डोमेस्टिक मार्केट में, तो भी मेरा रिफंड जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप टोटल टर्नओवर को 1.5 के हिसाब से वैल्यू ऑफ टोटल टर्नओवर को चेंज नहीं कर रहे हो। दैट हैज शुड हैव बीन चेंज, उसको भी चेंज करना चाहिए था। नेक्स्ट इज 96B। हमने अभी तक देखा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपको BRC की आवश्यकता होती है, मतलब BRC मतलब बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, वी हैव टू प्रोड्यूस बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, फॉरेन एक्सचेंज का जो आया है उसके बेसिस पे ही रिफंड मिलता था। देयर वाज नो कंडीशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यस सर, हाँ डागा साहब, hello, should I continue, Rohit sir? Yes sir, you continue sir. Okay, so now there is a requirement of BRC in 96B that has been inserted, so we have to give BRC also कि भाई हमारे को जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आ गई है, तो ये जो रिफंड तभी मिलेगा, और रिफंड तो पहले मिल जाएगा, परंतु अगर आपकी BRC प्रोड्यूस नहीं करोगे टाइम लिमिट जो RBI ने दी है उस पीरियड में, तो आपका रिफंड वापस ले लिया जाएगा। दैट वाज नॉट रिक्वायरमेंट अर्लियर आल्सो,
और एक्साइज के पीरियड में भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, परंतु ये नई रिक्वायरमेंट आई है। ड्रॉबैक में हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट रहती है कि ड्रॉबैक लेते हैं तो हमें बीआरसी देनी होती है। तो अब हम यही मतलब जो कस्टम का पोर्टल है वो क्या करता है कि डीजीएफटी में जो बीआरसी आती है उसको तो अपने आप ही लिंक कर देता है जो शिपिंग बिल के साथ। तो लिंक करने के बाद जो शिपिंग बिल्स रह जाते हैं जिनकी बीआरसी लिंक नहीं हो पाती है, उनका ही नोटिस एसएससी को आता है। तो दैट्स द सेम मैनेजमेंट शुड फॉलो इन द दिस क्या कहते हैं, इसमें भी आना चाहिए कि परंतु ये जो है कस्टम पोर्टल से जो हमें आईटीसी का रिफंड आ रहा है उसका तो हमें मिल जाएगा जो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हैं। तो परंतु ये जो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल का अपन प्रोपोर्शनेट जो क्रेडिट का रिफंड लेते हैं जीएसटी में, उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट इज रूल 141 में एक और अमेंडमेंट आया है कि भाई सीज गुड्स को भी वो डिस्पोज ऑफ ही कर सकता है, पावर दी गई है कमिश्नर को, वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है जो गुड सीज किए गए हैं और उससे जो है टैक्स की रियलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट, तो सॉरी ये पता नहीं क्या वेबिनार, ये कुछ थोड़ी सी पीपीटी में दिक्कत है। नेक्स्ट इज जो हमें ये मालूम है कि कंपोजिशन डीलर जो होते हैं, इफ ही इज ही क्रॉसेस द लास्ट ईयर उसकी वो नॉर्मल में था और वो ऑप्ट करना चाहता है कि अभी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, देन ही हैज टू फाइल CMT 02 बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब सपोज उसका 31 मार्च से पहले उसको फाइल करना होता है, बट कोविड से जो प्रॉब्लम हुई है और लॉकडाउन के कारण, उसके कारण गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया कि ये 30 जून तक इसको फाइल किया जा सकता है। और इसके अलावा जीएसटी आईटीसी 03 जो आपके पास स्टॉक में गुड्स होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, क्या कहते हैं अंडर प्रोसेस गुड्स हैं, उन सबका भी रिवर्सल करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आईटीसी 03 फाइल करना पड़ता है। वो फाइल करना पड़ता है 30 अप्रैल तक, परंतु उसकी डेट भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है। एक जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दूसरा जो है वो रूल 36(4) में आया है। 36(4) ऑल यू नो कि भाई हमें कंपेयर करना होता है जो टैली में अपनी क्रेडिट आई है विद जीएसटीआर 2A से, और जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होती है उसी की क्रेडिट अपन उसी इनवॉइसेस की क्रेडिट ले सकते हैं और उसके ऊपर ओवर एंड अबव 10% और ले सकते हैं। परंतु ये डिमांड की गई थी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के भी, ये जो 36(4) का है वो रिलैक्स कर दिया जाए। ये अमेंडमेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ से भी भेजा गया था, तो उन्होंने जो किया है कि इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो मंथली रिटर्न्स है उसका एक कम्युलेटिव 36(4) का अपन देखेंगे, हर महीने नहीं देखेंगे। सो यू कैन टेक द क्रेडिट ऑफ in the full credit which is reflected in your books in the month of February, March, April, May, June, July and August. When you file the GSTR 3B for the month of August in September, then you have to see कि 36(4) की रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं है। अगर वो क्रेडिट ज्यादा है then you have to reverse it, और अगर कम है तो then you can take the credit. So ये जो है नेक्स्ट और आया है एक अमेंडमेंट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और अपना हम लोग सब लोग जानते भी हैं कि भाई इंटरेस्ट और लेट फीस से वेवर, जो इंटरेस्ट पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने वाली है कि भाई जीएसटीआर 3B की जो डेट है दैट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड, उसको ड्यू डेट को आगे नहीं किया गया है, सिर्फ ये किया गया है कि इंटरेस्ट और लेट फीस का वेवर दिया गया है। तो फरवरी का मंथ का जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है मार्च 22, 2020, और उसको अगर आप फाइल करते हो, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है एंड यू फाइल विद इन 15 डेज, देन देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट। सपोज 20 मार्च का जो है 4 मई तक अगर आप फाइल करते हो तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। तो 20 मार्च का 4 अप्रैल हुआ, 4 अप्रैल तक अगर आप फाइल करते हो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। परंतु अगर आप 4 अप्रैल के बाद करते हो तो आपको 9% से इंटरेस्ट लगेगा, 18% की जगह पे 9% से इंटरेस्ट लगेगा। और इसकी जो डेट है फेवर की वो 24 जून रखी गई है, और अगर आप जून 24 तक नहीं फाइल करते हो, अगर जून 25 को अगर सपोज मैं फाइल करता हूं तो जो इंटरेस्ट है वो मार्च 20 से लेके पूरा लगेगा, मतलब पुराने वाले पीरियड का भी वो लेंगे।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपने को जो अपने एसएससीज को गाइड करना है कि भाई आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें और पहले से रिटर्न फाइल कर लें। तो इसी तरह से जो मार्च की है वो अप्रैल 20 है, उसमें भी जून 24 तक आपको रिटर्न फाइल करना है, अप्रैल में भी जून 24 तक रिटर्न फाइल करना है। अगर आप जून 24 तक रिटर्न फाइल करते हैं तो सिर्फ 15 दिन के बाद आप पे 9% इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप जून 24 के बाद करते हैं, मतलब 25, 26, 27 जून को करते हैं, तो आपको मार्च 20 से लेके या ड्यू डेट से लेके अगर फरवरी मंथ का है तो मार्च 20, मार्च का है तो अप्रैल 20, अप्रैल का है तो मई 20 के बाद से 15 आपको पूरा इंटरेस्ट 18% से देना पड़ेगा। इसी तरह से लेट फीस भी जो है जून 24 2020 तक निल है, परंतु अगर आप जून 24 के बाद मतलब सपोज 25 जून, 26 जून या 27 जून को फाइल करते हैं तो पूरा आपको टोटल लेट फीस देनी पड़ेगी फ्रॉम द ड्यू डेट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अपने को लास्ट डेट अपने एसएससी को गाइड करना है कि लास्ट डेट का आप वेट नहीं करें और आप अपना रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही 24 जून से पहले फाइल कर दें। अब इसी तरह से जो टर्नओवर जिनका 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, उन एसएससी के लिए भी फरवरी का जो है रिटर्न की लास्ट डेट मार्च 22 या 24 से डिपेंडिंग ऑन इन विच स्टेट दे आर ऑपरेटिंग, तो उसके लिए उनकी जो लास्ट डेट है वो जून 29 रखी गई है। उसमें निल इंटरेस्ट रहेगा। जून 29 तक अगर आप फाइल करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, परंतु अगर आपने जून 29 से भी लेट कर दिया है तो 18% फुल इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से लेट फीस भी वेवर है, परंतु जून 29 के बाद सपोज जून 30 को लगा तो आपको मार्च 22 या 24 जो भी डेट है आपकी स्टेट की, उससे लेके पूरा लेट फीस पर डे 50 रुपीज पर डे के हिसाब से देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसी तरह से जो अप्रैल का रिटर्न है वो मई 22 से, उसकी लास्ट डेट जून 30 है। और इसी तरह से अगर 1.5 करोड़ के नीचे के एसएससी हैं तो फरवरी में उनकी डेट जो थी मार्च 22 और 24 थी, पर उनके लिए जो लास्ट डेट है फरवरी मंथ में जून 30 है। अगेन वही प्रोविजन है कि भाई आपको कोई भी जून 30 तक आप फाइल करते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, परंतु अगर इंटरेस्ट अगर आप जून 30 के बाद करते हो तो 18% फुल लगेगा। ये रिप्रेजेंटेशन हमने वापस भेजा है कि भाई इसमें इंटरेस्ट रेट जो है ये नहीं होनी चाहिए। एक तो 9% का वेवर होना चाहिए फॉर 1.5 करोड़ और मोर, जो जिसका टर्नओवर उसके एसएससी के लिए 9% का भी वेवर होना चाहिए और 18% ब्याज नहीं लगना चाहिए। मतलब ये जो है एक दिन का ही ब्याज लगना चाहिए, पूरा ही आप लगा दो पूरे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह से लेट फीस में भी यही है। तो मार्च वाला जो है उसकी लास्ट डेट जुलाई 3 है और इसी तरह से अप्रैल वाली जुलाई 6 है। ये जो ड्यू डेट्स हैं, इसी तरह से लेट फील का जो वेवर है वो जीएसटीआर 1 के लिए भी दिया गया है। जो मार्च मंथ का जो अपन जीएसटीआर 1 है उसकी ड्यू डेट अप्रैल 11 है, परंतु उसकी जो ड्यू डेट है मतलब अगर आप लेट फीस है वो जून 30 तक 0 रहेगा फॉर ऑल एसएससीज, परंतु अगर जून 30 के बाद आप रखते हो तो 50 रुपीज पर डे, परंतु ये जब से कब से लगेगी क्योंकि ये कंडीशनल नोटिफिकेशन था, कंडीशनल वेवर था, तो शुरू से आपको अप्रैल 11 से आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। सो अगेन आपको जीएसटीआर 1 जून 30 2020 से लेट नहीं करना है कि इन एनी केस, although we have represented to the government के भी इस तरह का ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, परंतु वो अभी तक कुछ नहीं आया है। इसी तरह से जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली भरते हैं मतलब 1.5 करोड़ से नीचे हैं, जनवरी टू मार्च जो है उसमें अप्रैल 30 2020 ड्यू डेट थी, परंतु उसको जून 30 कर दिया गया और अगेन वही 50 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। नेक्स्ट इज जो 34/2020 नोटिफिकेशन आया उसमें CMP 08 जो फाइल करते हैं क्वार्टरली कंपोजिशन वाले, उसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है, उसको एक्सटेंड करके 7 जुलाई तक कर दिया गया है। इसी तरह से GSTR 4 जो है जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं कंपोजिशन वाले, उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल होती है, उसको एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दिया गया है। एक जो और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है, एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस मतलब व्हाई ऑर्डिनेंस? बिकॉज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड you want there is a
crisis situation and you want to introduce any section in the act, then you can come with the ordinance. Article 123(1) of Constitution gives this power to the government to come up with the ordinance. और अभी उन्होंने एक टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस 31 मार्च को लाए हैं, द रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 168A इन द CGST एक्ट. अगर ये ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो ऑर्डिनेंस जो है 6 मंथ्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट से रेटिफाई होना चाहिए, अदरवाइज ये रिपील हो जाएगा. तो उसको अपने को 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को पास कराना है और इसमें और भी एक्सटेंशन मिल सकता है फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. तो 168A जो CGST एक्ट में लाया गया उसमें गवर्नमेंट को पावर मिली है कि भाई वो रिलैक्स कर सकती है बल्क में सभी जो ड्यू डेट्स हैं उसको. तो उन्होंने 168A की पावर को यूज करते हुए नोटिफिकेशन 35/2020 इंट्रोड्यूस किया है. सॉरी 35/2020 को इंट्रोड्यूस किया है. उसमें ये बताया गया कि वेयर ए एक्ट, जो कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस जो इशू करना है अथॉरिटी, कमिश्नर या ट्रिब्यूनल, व्हाटएवर नेम, अगर वो फॉल करता है विद इन 20 मार्च से लेके 29/6 तक, मतलब 29 जून तक, देन इसकी जो ड्यू डेट है इट विल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड टू 30 जून. इसी तरह से एसएससी ने कोई भी अपील फाइल करनी है, रिप्लाई फाइल करना है या एप्लीकेशन या कोई भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को देना है, तो देन इट्स डेट आल्सो एक्सटेंडेड टू 30 जून. तो ये जो है ये एक वेलकम स्टेप है कि भाई उन्होंने जो भी है लॉकडाउन पीरियड को देखते हुए एक बल्क पावर लेके उसमें सभी चीजों को एक्सटेंड कर दिया है. और इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट आया है ई-वे बिल का. आज तो जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी तो ये ई-वे बिल का अमेंडमेंट नहीं था, परंतु लेटर ऑन जब नोटिफिकेशन आए तो इसमें ये अमेंडमेंट आ गया विच वाज सॉट रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रेड एंड इंडस्ट्री के भी हमें ये मिलना चाहिए. तो ई-वे बिल जो है उसमें अगर आपने कोई ई-वे बिल मांगा है 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक काटा है और वो उसका मटेरियल जो है चला है, परंतु लॉकडाउन के पोजीशन के कारण वो डेस्टिनेशन पे नहीं मिला है और आप एक्सटेंड भी नहीं कर पाए क्योंकि आपकी इंडस्ट्री भी बंद है, तो उस केस में इसकी जो ड्यू डेट है वो ऑटोमेटिकली 30 अप्रैल हो जाएगी. परंतु जो लॉकडाउन है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड 3rd May आल्सो. तो दैट्स व्हाई वी आर अगेन रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट एंड वी हैव सॉट कि भाई इसकी भी डेट जो है एक्सटेंड कर दी जाए. इसी तरह से जो ऊपर जो अमेंडमेंट आया है उससे कौन कौन से टीसीएस का जो रिटर्न है, जो जीएसटी टीसीएस है उसकी रिटर्न की लास्ट डेट जो थी अभी पीछे थी और हमारे से काफी लोगों ने पूछा भी, प्रफुल्ल मेहता जी ने भी पूछा और भी काफी लोगों ने पूछा कि भाई इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हुई है क्योंकि ड्यू डेट में तो सिर्फ 3B और 1 की ही डेट एक्सटेंड की है, परंतु ये जो नोटिफिकेशन 35 आया उसमें भी ये जो टीसीएस और टीडीएस के रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो भी 30 जून हो जाएगी. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो रिटर्न फाइल करते हैं उनकी डेट भी 30 जून हो जाएगी. परंतु जो कौन सी चीजें जो इस 35/2020 में कवर नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक लिस्ट है. टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो रूल्स हैं जो चैप्टर 4 में है वो पूरे लागू रहेंगे, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया है. ऐसे ही जो कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10(3) में, या उस कोई आदमी अगर कंपोजिशन स्कीम में एक्सटेंड कर देता है, मतलब सपोज उसका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाता है और विद इन वीक उसको फाइल करना पड़ता है. तो ये जो है सेक्शन 10(3) से ये रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ये अभी भी एप्लीकेबल रहेगा. परंतु जो है जो 10(2) और 10(1) है जिसमें अपन वो जीएसटीएम ये जो रिटर्न है कंपोजिशन स्कीम का और जो ऑप्टिंग का है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, वो अभी भी 30 जून हो सकती है. परंतु ये एनोमली क्रिएट हो गई है, ये हम आगे टेकअप करेंगे कि ये एनोमली किस तरह से हुई है. इसी तरह से सेक्शन 25 के जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन के भी कंटिन्यू रहेंगे. सेक्शन 27 जो स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ये भी एप्लीकेबल रहेंगे. इसी तरह से सेक्शन 31 में टैक्स इनवॉइस का जो है, अगर आप कोई मटेरियल डिस्पैच करते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस एंड ई-वे बिल एंड देन यू कैन डिस्पैच द मटेरियल. दिस इज आल्सो एप्लीकेबल. इट्स डेट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून.
इसी तरह से फर्निशिंग और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ GSTR1 की डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। वाई? बिकॉज उन्होंने एक अलग से सेपरेट नोटिफिकेशन दे दिया है जिसमें ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया है, परंतु उन्होंने जो है फाइलिंग की डेट को वो कहा है कि भाई अगर लेट फीस और से वेवर हो जाएगा, और अगर आप उससे भी आगे चले जाते हैं तो उसमें लेट फीस पुराने ड्यू डेट से पूरी लगेगी। तो ये जो है GSTR1 के लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसलिए इसको इसमें कवर नहीं किया गया है। इसी तरह से सेक्शन 47 और 50 लेट फीस और इंटरेस्ट को भी वेवर नहीं दिया गया है, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था कि लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर उन्होंने दिया है, परंतु ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है रिटर्न्स की। इसी तरह पावर ऑफ इंटरेस्ट अरेस्ट वो भी लागू रहेगी, और लायबिलिटी टू पार्टनर टू पे फर्म टू पे टैक्स, अगर पार्टनरशिप फर्म डिफॉल्ट हो जाती है तो रिकवरी पार्टनर से हो सकती है, तो वो सेक्शन 90 जो है वो भी लागू रहेगा। सेक्शन 122 में जो पेनल्टी है वो भी लागू रहेगी, पर इस पे कोई नहीं है। इसी तरह डिटेंशन और सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांजिट, जो अगर रास्ते में अगर आपके पास कोई भी ई-वे बिल नहीं है तो उसका डिटेंशन वाले ये जो प्रोविजन है ये भी अभी लागू रहेंगे। सेक्शन 39 जिसमें अपन 3B और रिटर्न फाइल करते हैं जी, उस पे भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्होंने सेपरेटली एक नोटिफिकेशन निकाला है, परंतु उसमें सेक्शन 39 में 3, 4 और 5 जो सब रूल है उसको करा गया है, उसको लागू रहेंगे, उसको एक्सेप्शन दिया गया है, तो वो उसकी डेट जो है 30 जून हो जाएगी। इसी कारण TDS, TCS और जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो डेट्स है वो 30 जून तक हो गई। अब देखिए, अगर इसमें जो रिटर्न्स हैं, मतलब GSTR 3B और GSTR1 के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, परंतु एक सेपरेट नोटिफिकेशन हमने के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए भी आया है, जिसमें उनके रिटर्न्स को भी एक्सटेंड किया गया है, परंतु इसमें एक्सेप्शन में वो नहीं है। तो देयर विल बी 2 डेट्स, मतलब एक तो 30 जून हो गई उसके लिए और एक इधर हो गई, तो दोनों डेट्स कैसे हो सकती हैं? तो ये एक अनॉर्मली है जो क्रिएट कर दी गई है, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और 168A में कंपोजिशन के जो रिटर्न्स है उसको भी एक्सेप्शन देना चाहिए। सेक्शन 68 में इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट ऑफ सो फार एज ई-वे बिल इज कंसर्न, तो इसका ई-वे बिल से भी किया गया है। और इनसे रिलेटेड जो है, जो रूल्स और नोटिफिकेशन है, उसके जो सेक्शन ऊपर दिए गए उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स है उसका भी डेट एक्सटेंड होके 30 जून हो जाएगी। अब इसमें एक मतलब दिक्कत है कि पेमेंट ऑफ सप्लायर विद इन 180 डेज, जो 16(2)D में प्रोविजो है, उसका प्रोविजन टू सेक्शन 16(2)D में उसका रिलैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, वो भी 30 जून को जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये भी मेरे हिसाब से इसके ऊपर भी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आपकी डेट जो है 180 डेज जो है 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में फॉल करते हैं, तो आपकी डेट ऑटोमेटिकली 30 जून को एक्सटेंड हो जाएगी। अगर रिफंड फाइल करना है तो उसकी क्या डेट होगी, वो उसका एक सर्कुलर भी आ गया कि रिफंड की डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपन को रिटर्न ऑफ जॉब वर्कर जो ITC 04 है सेक्शन 143 में, उसका क्या होगा, उसमें भी यही डेट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ ITC रिवर्सल 42, 43 में जो अपन ITC रिवर्सल करते हैं, अगर उसमें देर हो जाती है तो इंटरेस्ट की पेमेंट की लायबिलिटी आती है, क्या वो भी एक्सटेंड हो जाएगी? डेफिनेटली वो भी 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगी। और ई-वे बिल का जो अपन ब्लॉकिंग है, मतलब अगर आपने 2 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली रिटर्न नहीं भरे हैं तो ई-वे बिल की फैसिलिटी जो है ब्लॉक हो जाती है सेक्शन रूल 138E में। तो अगर उन्होंने रिलैक्सेशन ई-वे बिल से भी किया है तो ये भी होना चाहिए, पर इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसी तरह से LUT का भी दिया गया था कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, हमने एक अपडेट भी बनाया था और अपने SSC को इन्फॉर्म भी किया था, सभी को, ट्रेड एंड लार्ज को भी, कि भाई इसमें भी ये जो है LUT भी कवर रहेगी और आप LUT 30 जून तक कर सकते हो। उसका एक बाद में गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी निकाल के कह दिया कि आप पुरानी वाली जो LUT की नंबर है वो ही मेंशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो मई की ड्यू डेट है GSTR 3B, अब ये जो है ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दी गई है। मई में जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनकी 27 जून होगी, और जिनका 5 करोड़ से नीचे है उसकी 12 जुलाई होगी, और जो लेस देन 5 करोड़ है उनकी 14 जुलाई होगी। इसका एक सर्कुलर नोटिफिकेशन अलग से 36/2020 निकाला गया। अब एक सर्कुलर इशू किया गया 135/05, इसमें बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर।
पहले ये था कि भाई जो रिफंड क्लेम लगेंगे, जो अपन अनयूटिलाइज क्रेडिट रह जाता है उसका रिफंड क्लेम लगाते थे, तो उसमें वो कहते थे कि भाई आप जो ये रिफंड क्लेम लगा रहे हैं ये सिर्फ मंथली लग सकता है। लेटर ऑन गवर्नमेंट सर्कुलर आया था, उसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि भाई ये आप मंथली नहीं और एक पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। सपोज आप जनवरी से लेके मार्च तक का भी कर सकते हैं, सितंबर से लेके दिसंबर का भी कर सकते हैं, कोई भी पीरियड का कर सकते हैं। परंतु उसमें ये पूछा गया कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर सकता है कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, फाइनेंशियल ईयर वाइज क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है कि आप फाइनेंशियल ईयर क्रॉस करके रिफंड नहीं लगा सकते, तो आप सर्कुलर से ये कंडीशन कैसे इंपोज कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये अल्ट्रा वायरस है, इट इज गोइंग बियॉन्ड द सेक्शन, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने उसके ये एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने, तो उसको गवर्नमेंट ने फॉलो कर लिया और एक सर्कुलर निकाला। उसमें ये कहा कि आप फाइनेंशियल ईयर्स क्रॉस करके भी रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप जनवरी से लेके मई तक का रिफंड भी लगा सकते हैं। देयर इज नो नीड टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईसीटी ड्यू टू रिडक्शन इन जीएसटी रेट। सपोज आपका जो है जीएसटी रेट जो है आपकी 28% थी और आप एक ट्रेडर हैं और आपकी जब ये रेट जो है रिड्यूस होके 28 से 18% हो गई, तो आपके पास अक्यूमुलेटेड क्रेडिट रह गया। तो कुछ लोगों ने सेक्शन 54(3) में ये रिफंड अप्लाई कर दिया कि भी हमें रिफंड मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अक्यूमुलेटेड क्रेडिट होगी, हमारा जो इनपुट पे टैक्स था वो 28% था और आउटपुट पे जो है 18% है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये वाला रूल है इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्लीकेबल है कि जब उनका जो इनपुट की जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है और आपसे कोई और चीज बना रहे हैं उसकी टैक्स रेट ज्यादा है, उसकी कम है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी का वो रिफंड क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो ट्रेडर्स हैं जो सेम गुड्स में डील करते हैं, जैसे अब मैंने पेन खरीदा और पेन ही बेच रहा हूं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन द मैनर ऑफ रिफंड टैक्स पेड ऑन अदर देन जीरो रेटेड। हमने ऊपर देख ही लिया सेक्शन रूल 86 और 92 में उन्होंने अमेंडमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई आपको जितना आपने पेमेंट एक्सेस किया उसका आपको क्रेडिट और कैश में जितना प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से रिफंड मिलेगा, पूरा कैश में नहीं मिलेगा। अगेन हमारा वही कहना है कि भाई जब हमने पे किया वो एक्सेस पे किया वो सब पूरा कैश में से ही एक्सेस पे हुआ है। अगर मैं एक्सेस में से पे नहीं करता, अगर मैं नॉर्मल जो सही है वो पे करता, तो मैं कैश में पे करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। तो इसलिए जो रिफंड मिलना चाहिए वो कैश में मिलना चाहिए। इसका ये प्रोविजन होना चाहिए कि भाई आप अगर नॉर्मली पे करते, अगर आप सही पे करते तो कितना पे करते और आपने जो गलत पे किया वो कितना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वो जिसमें से आया उसका रिफंड दे दिया चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो प्रोपोर्शनेटली देंगे। ये एक अनोमली क्रिएट हुई है इस सर्कुलर से। नेक्स्ट है आईटीसी 54(3) में जो अपन लेते हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई जब आईटीसी का हम रिफंड लेते हैं प्रोपोर्शन अनयूटिलाइज क्रेडिट का, तो उसमें क्या होता था कि जो जीएसटीआर 2A में आए वो रिफंड तो हमें इनवॉइसेस के रिफंड मिल ही जाता था। इसके अलावा जो इनवॉइसेस नहीं आते थे तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि आप उसके साथ उनकी इनवॉइसेस की कॉपी भी दे दो, तो उससे आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये परंतु अब जो है उन्होंने ये कह दिया कि हमने 36(4) नया रूल ले आए हैं, उसमें आपको मैच करना है और उतना ही क्रेडिट ले सकते हो जो मैच होता है, सिर्फ 10% क्रेडिट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि अब जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में आएंगे उसी का रिफंड मिलेगा। मतलब जो रिफंड मतलब जो आपके इनवॉइसेस नहीं आए हैं उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, पर जो 10% हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्या उसका रिफंड नहीं मिलेगा, तो फिर वो कब मिलेगा। ये एक अनोमली क्रिएट कर दी गई है ये सर्कुलर द्वारा, हालांकि एक्ट सेक्शन में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। एक और नई रिक्वायरमेंट इस रिफंड के लिए उन्होंने डाली है कि एचएसएन कोड और एसएससी कोड भी आपको डालने हैं। इसके पीछे ये उन्होंने ये कहा है कि एचएसएन कोड क्यों डालने हैं, क्योंकि अगर आप एचएसएन कोड या एसएससी कोड डालोगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विस है। इनपुट सर्विस और इनपुट का तो पता लग सकता है, पर कैपिटल गुड्स का पता लगेगा ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि किसी एसएससी के लिए कोई कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, उसके लिए वो इनपुट भी हो सकता है। सपोज एक बेरिंग मैन्युफैक्चरर है जिसका प्रोडक्ट जो 8482 में आता है,
अगर 84 चैप्टर जो है मशीनरी के लिए है, परंतु जो उसका रॉ मटेरियल आएगा बेरिंग वाले का वो भी 84 में आएगा, तो इट इज अ इनपुट फॉर हिम। तो अगर वो इनपुट है तो उसपे गवर्नमेंट टैरिफ हेडिंग देख के, HSN कोड देख के कैसे पता लगेगा कि भाई ये कैपिटल गुड्स है या इनपुट है? ये मेरे को समझ नहीं आया, परंतु फिर भी ये रिक्वायरमेंट की गई है। अब आपको जो रिफंड लगाना है उसमें जो स्टेटमेंट बी आपको डालना है उसमें आपको HSN वाइज HSN कोड और SSC कोड भी डालने हैं, परंतु इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि भाई अगर SSC ने, जो आपका सप्लायर है, उसने HSN कोड नहीं डाला है तो उसको डालने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब इसके बेसिस पे भी हमारे कुछ रिफंड क्लेम जो है रिटर्न कर दिए डिपार्टमेंट ने कि भाई ये एक रिक्वायरमेंट नहीं आ गई है और आप इसको HSN कोड डाल के दो। नेक्स्ट एक सर्कुलर 137 गवर्नमेंट लाई है, ये एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इसमें ये कहा गया कि अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और एडवांस रिसीव किया है, अब तो सर्विस के एडवांस पे भी टैक्स आपको पे करना पड़ता है, और आपने टैक्स पे कर दिया और उसका टैक्स इनवॉइस भी इशू कर दिया है, तो और बाद में ये कैंसिल हो जाता है कि भाई आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, तो आप उसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि भाई जैसे आप आज अपील करने के लिए अपने पास कोई क्लाइंट आया, हमने उसको कहा कि भाई हम आपकी अपील फाइल कर देंगे, हमारी फीस ये है, आप पे कर दीजिए एडवांस में। उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट कर दिया, लेटर ऑन SSC आता है कि हमें अपील फाइल नहीं करनी है, हम आपसे यहाँ से फाइल ले जाना चाहते हैं, तो वो वापस ले जाता है। तो हमें ये वापस टैक्स इनवॉइस जो इशू किया है उसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं और उसकी क्रेडिट वापस ले सकते हैं। परंतु अगर अब ये क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट कैसे होता है GSTR 3B में, ये आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई हम जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से क्रेडिट नोट को रिड्यूस कर देते हैं, परंतु जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ है, कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो रहे क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है। तो अगर हमारे कोई भी उसमें आउटपुट लायबिलिटी नहीं है और क्रेडिट नोट अपन लेस करते हैं तो नेगेटिव फिगर आ जाता है। अगर नेगेटिव फिगर तो GSTR 3B लेता नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि उसमें आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एडवांस रिसीव किया है सर्विस के केस में, और जैसे एक होटल इंडस्ट्री है उसने एडवांस रिसीव किया और आपने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया, आपने इनवॉइस तो इशू करोगे नहीं, जब आके वो ठहरेगा तभी इनवॉइस इशू करोगे, आपने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया, परंतु लेटर ऑन जो आपका होटल है उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया और वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए और आपने ये जो है अमाउंट रिफंड भी कर दिया SSC को, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? आपको एक रिफंड वाउचर सेक्शन 31(3)E में इशू करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड वाउचर इशू करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो आपको उसका रिफंड लगाना पड़ेगा। तो ये एक वेलकम स्टेप है कि इसका जो आपने एक्सेस पेमेंट एडवांस पे किया है, अभी ये ट्रेड, होटल और टूर और ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उन्होंने कोई भी जो एडवांस लिया और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, परंतु वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट रिफंड दे देगी। तो ये एक क्लैरिफिकेशन बहुत वेलकम है कि बहुत अच्छा है कि भाई हमें रिफंड मिल जाएगा। और अगर अपन ने कोई गुड्स सप्लाई किए हैं और उसका टैक्स इनवॉइस इशू करके ही हम गुड्स सप्लाई कर सकते हैं और वो गुड्स रिटर्न हो गए हैं, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? वी ऑल नो कि सेक्शन 34 में हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। उस क्रेडिट नोट को भी हमें क्या ट्रीटमेंट करना है उसको, और टोटल आउटपुट लायबिलिटी में से रिड्यूस करना है GSTR 3B में। परंतु इसमें दिक्कत ये है कि 3B में अगर अपन के कोई टैक्स इनवॉइस आगे है ही नहीं, क्योंकि अप्रैल मई जून में कोई भी इनवॉइस इशू हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसके केस में अपन उसको उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इस सर्कुलर में एक और क्लैरिफिकेशन दिया गया कि अगर आपने LUT फाइल की है, जो मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि अगर आपने LUT जो है 2020-21 की अपने को मार्च से पहले फाइल करनी थी, परंतु वो फाइल नहीं हो पाई, तो जो 168 में गवर्नमेंट के पास एक पावर आई थी उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन 35/2020 इशू किया। उस केस में आप उससे जो है उससे 30 जून हो जाएगी इसकी डेट जो है ऑटोमेटिकली इसकी डेट। तो अब हम एक्सपोर्ट कैसे करें? इनवॉइस में क्या लिखे, शिपिंग बिल में क्या लिखे? तो वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी पुरानी LUT की जो डेट है और नंबर है वो ही लिख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि TDS रिटर्न का क्या होगा। उन्होंने कहा TDS रिटर्न के केस में भी आप TDS जो है उसकी डेट भी 30 जून तक हो जाएगी,
विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो आप टीडीएस रिटर्न भी लेट फाइल कर सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। और रिफंड क्लेम के केस में भी क्या होगा, रिफंड क्लेम भी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आपकी ड्यू डेट जो लास्ट डेट है, अगर वो फॉल कर रही है 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में, तो उसकी डेट भी 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट उन्होंने किया कि गवर्नमेंट रिफंड क्लेम के लिए एक ड्राइव चला रही है ताकि एसएससीज को ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल जाए। उन्होंने रिफंड क्लेम्स के लिए बहुत सारे ये दिए हैं और उन्होंने ये किया कि भाई रिफंड क्लेम अगर आपका है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर हम रिफंड क्लेम दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जो डेफिशिएंसी मीमो इशू करते हैं वो नहीं इशू करेंगे और जल्दी से जल्दी रिफंड देने की कोशिश करेंगे। आप सरप्राइज होंगे कि हमने एक केस में फ्राइडे को रिफंड क्लेम लगाया रिसेंटली और मंडे को हमें सैंक्शन भी हो गया डिपार्टमेंट से। और आप इसकी देखिए क्या हो रहा है, वीपी डागा साहब के पास कमिश्नर साहब से फोन भी आया कि ये जो रिस्की एक्सपोर्टर्स हैं इनकी ये डिटेल्स है, ये हम उनको ट्रेस आउट नहीं कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट को हमें जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, इनको आप कन्वे कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स दे दें तो हम जल्दी से जल्दी आपको रिफंड क्लेम दे दें। और वीपी डागा साहब ने भी मेरे को भी फोन किया कि भाई इसमें आपकी कोई पार्टी तो नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत कीन है कि भाई इस सिचुएशन में ट्रेड और इंडस्ट्री की मदद की जाए और इसलिए रिफंड क्लेम्स दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी दे रहे हैं ताकि लिक्विडिटी ट्रेड और इंडस्ट्री के पास रहे। और हमारे वीपी डागा साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, ऑलवेज keen to help the trade and association and as well as member of tax bar। तो उनका ये फोन आया और उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि जो दूसरी पार्टी है ये इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन हो सकते हैं। थैंक यू डागा साहब। और जो एक टैक्सेशन एंड अदर ऑर्डिनेंस लाए उससे एक फाइनेंस एक्ट में 127 सेक्शन भी इंसर्ट किया गया है जो सबका विकास स्कीम थी, सबका विकास स्कीम थी जिसमें अपने एक्साइज और उसके लिटिगेशन अपन कवर कर रहे थे। उसमें जो लास्ट डेट थी 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो और 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, जब से SLV-DR3 इशू हो जाता है तब से। उसको भी रिलैक्स किया गया है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसको 30 जून तक पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज आल्सो अगेन वेलकम स्टेप। और जो सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की जो लास्ट डेट है मार्च अप्रैल और मई की, वो भी एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। इसी तरह से जो कोई भी एक्शन लेना है सेंट्रल एक्साइज में, जो कि अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टबाको प्रोडक्ट्स में लागू है सेंट्रल एक्साइज के प्रोविजन, उसकी डेट भी एक्सटेंड होके 30 जून तक हो गई। दिस कंप्लीट्स माय session for this GST. Now we will take up the DGFT and custom portion. रोहित साहब क्या मैं कंटिन्यू रखूं या क्या? Yes sir, you continue. Continue. Thank you. थोड़ा सा ब्रेक मिल सकता है? Can I have a glass of water, please? Yes, yes, you can. Thank you. वेबिनार में कोई देख नहीं सकता, आपको टेंशन नहीं है। मेरे को देख नहीं सकता क्या? नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर देते हैं हम आपको। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ रोहित साहब, आई एम कंटिन्यूइंग। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन सर्कुलर और प्रेस रिलीज इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए आई है, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2015 और 20 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की थी सेक्शन 5 में फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में। उसमें जो था कि ये जो पॉलिसी है वो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी। It was ending on 31st March 2020. So a new policy has to be announced by 1st April. But इसमें क्या हुआ कि क्योंकि कोविड और 19 के जो लॉकडाउन की पोजीशन आई उसके कारण ये पॉलिसी अनाउंस नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी by 1 more year and it has now the last date of foreign trade policy 2015-20 is 31st March 2021. अब इससे जो ये जो
foreign trade policy extend की गई है for 1 year, that has created a doubt also regarding MEIS. MEIS जो है वो that is a part of foreign trade policy and the ये एक डाउट क्रिएट हुआ है कि whether it has been extended to 31st March 2020 also 21 also, ये भी एक्सटेंड हो गई है 1 ईयर के लिए। तो उसका जो है वो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि MEIS जो है वो 31 मार्च से एक्सटेंड होके 31 दिसंबर तक एक्सटेंड की गई है। इसकी जगह पे जो नई स्कीम आनी थी RODTEB, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस फ्रॉम एक्सपोर्ट गुड्स, उसका जो है वो जो नई स्कीम आनी थी वो अभी आई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वो 1 अप्रैल से अनाउंस होनी थी परंतु वो आई नहीं, तो गवर्नमेंट ने MEIS को ही एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर तक, परंतु ये एक्सटेंड नहीं हुआ 31 मार्च तक। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 31 मार्च तक हुई है, 31 मार्च 2021 तक, बट MEIS एक्सटेंड हुई है 31 दिसंबर 2020 तक। और उन्होंने ये भी कहा कि RODTEB स्कीम भी वो ऑपरेशनल कर रहे हैं और उसमें जो भी टैरिफ एडिंग, HSN कोड या कोई भी टैरिफ लाइन आ जाती है अगर RODTEB में, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी MEIS से। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बेनिफिट साइमल्टेनियसली आप नहीं ले सकते। सेकेंडली, जो RODTEB का जो नया प्रोसीजर है, गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी विल गिव यू द प्रोसीजर लेटर ऑन, दैट इट मींस दैट दिस प्रोसीजर इज नॉट ऑनलाइन available right now or it is not operational, that's why MEIS scheme has been extended. और MEIS स्कीम में जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की वो 1 ईयर होती है फ्रॉम द लेट एक्सपोर्टर डेट मेंशन्ड इन द शिपिंग बिल। तो और अगर आप उससे भी लेट करते हो तो 2 इयर्स तक कट लग के आपका उसको MEIS अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अगर आपने नॉर्मल पीरियड में 1 ईयर में आपने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगर आपकी डेट जो है 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक फॉल करती है तो उसको उन्होंने 1 ईयर तक 3 मंथ से एक्सटेंड कर दिया। और सर्कुलर 3/2021 से एक क्लैरिफिकेशन दिया है जो मैंने ऑलरेडी स्टिक कर दिया है कि भाई MEIS की डेट जो है 31 दिसंबर तक की है और MEIS की जो है जो HSN और टैरिफ लाइन या HS आइटम जो RODTEB में आ जाएंगे उसका MEIS में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और इसका जो प्रोसीजर है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। नेक्स्ट, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये भी एक स्कीम है जिसमें अगर आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट एक स्क्रिप्ट देती है। ये स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST और कंपनसेशन सेस व्हाइल इंपोर्टिंग द गुड्स। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये 2018-19 के लिए जो है उसकी लास्ट डेट 12 मंथ्स होती है, मतलब इसका जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020 थी उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसी तरह जो 2019-20 का जो है SEIS स्कीम वो कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन किया है, परंतु वो उसमें कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होंगी वो अभी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। और जो 2020-21 के लिए SEIS स्कीम जो डिसकंटिन्यू करने वाली थी गवर्नमेंट, वो अभी उन्होंने डिसीजन को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि भाई वी विल टेक डिसीजन लेटर ऑन कि भाई वेदर इट विल कंटिन्यू फॉर द 2020-21 आल्सो। नेक्स्ट जो था, if you apply for any export benefit, whether it is advanced license, whether it is MEIS or SEIS, कुछ भी अप्लाई करते हो, then you have to register with the Export Promotion Council। RCMC वैलिड होनी चाहिए आपके पास। तो RCMC जो है वो अगर आपका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही है तो गवर्नमेंट ने कहा कि we will deem this that extension has been granted up to 30th September 2020। और later on when you pay, you produce the proof to the DGFT that you have paid the RCMC fee। क्योंकि अभी जो कोविड-19 के साथ पोजीशन है तो काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा 30 सितंबर तक हम मान लेंगे कि आपने पेमेंट कर दिया है। इसी तरह से स्टेटस होल्डर स्कीम जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होती है और स्टेटस होल्डर को एक
स्टेटस दिया जाता है एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें वो कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। उनकी जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स होते हैं वो भी फास्ट ट्रैक में क्लियर होते हैं, और उनको कोई भी बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं देती जाती। ये सब बेनिफिट्स होते हैं। तो जो स्टेटस होल्डर है उसकी जो है लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी, वो एक्सपायर हो रहा था, परंतु उन्होंने कहा कि भाई उन सभी एसएससी जिनको पीछे स्टेटस होल्डर्स मिला हुआ है, तो उनकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली 31 मार्च 2021। तो ये कंटिन्यू रहेगा और उनको स्टेटस होल्डर रहेगा, और उनको जो बेनिफिट मिल रहे थे वो आगे भी बेनिफिट मिलते रहेंगे। इसी तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट, वी नो डीम्ड एक्सपोर्ट जीएसटी में भी कि अगर आपने एडवांस लाइसेंस को इनवैलिडेट करके इंडिया में से कोई सप्लाई ली है, या ईपीसीजी लाइसेंस को इनवैलिडेट करके कोई लिया है, या ईयू को सप्लाई की है, तो उस केस में डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड जीएसटी में भी मिलता है। अगर आप जीएसटी में रिफंड नहीं लेते हैं तो आपको डीजीएफटी टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का रिफंड देती है, ड्रॉबैक भी देती है। तो उसकी जो लास्ट डेट थी इसको अप्लाई करने की वो 12 मंथ्स थी। तो वो जो है अगर 1 मार्च को एक्सपायर हो रहा है तो उसकी जो है उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसी तरह से डीएफआईए, जो डीएफआईए अपन इंपोर्ट करते हैं एक स्कीम है इंपोर्ट लाइसेंस की, उसमें भी उसकी भी जो वैलिडिटी और ट्रांसफरेबिलिटी की जो डेट है वो 6 मंथ से एक्सटेंड कर दी जाएगी। एडवांस लाइसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लाइसेंस जो है, एडवांस ऑथराइजेशन, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर 4 में आता है। उसमें आप अगर कोई चीज, अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन, अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई करके कोई भी गुड्स जो इनपुट्स हैं, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप इंपोर्ट कर सकते हो। उस पे आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा, उस पे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो जो जीएसटी से पहले उसमें ये था कि एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में बेसिक कस्टम ड्यूटी का भी एग्जेम्पशन था, सैड का भी एग्जेम्पशन था, और एडिशनल ड्यूटी का भी एग्जेम्पशन था। आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी इंपोर्ट कर सकते थे और उसमें सब एग्जेम्पशन था। परंतु जब जीएसटी आया तो उन्होंने कहा आईजीएसटी और कंपनसेशन असेस लगेगा और उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा, परंतु आपको सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन रहेगा। तो लेटर ऑन जो सितंबर 2017 में गवर्नमेंट ने इसमें ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने डिमांड की कि आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस का भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसका एग्जेम्पशन दे दिया। परंतु उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, प्री इंपोर्ट कंडीशन। प्री इंपोर्ट कंडीशन मतलब आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले एक्सपोर्ट कर देते हो डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स प्रोक्योर करके, अब लेटर ऑन आप इंपोर्ट करते हो, तो फिर आप या फिर आप उसको लाइसेंस को ट्रांसफर कर देते हो, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत सारी एनोमली क्रिएट हो गई, किस तरह से उसको रखना है, उसमें फीफो मेथड चलेगा या कौन सा मेथड चलेगा। और डीआरआई ने भी काफी सारी रेट्स डाली और उसमें हर एक एसएससी को सम्मन इशू किया गया कि भाई आपका ये आपने क्लियर नहीं किया है। कस्टम डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं आया, उन्होंने आईजीएसटी किसी भी केस में पेमेंट नहीं करने दिया और उसको एग्जेम्पशन दे दिया। परंतु डीआरआई ने कहा कि नहीं, इसमें आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर इंडिया इशू था, लिटिगेशन हुआ काफी सारा। चेन्नई के हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया, पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इसमें पेमेंट नहीं होना चाहिए। इवन उन्होंने फिर बाद में जनवरी 2019 में इसको अमेंड भी कर दिया कि प्री इंपोर्ट कंडीशन हटा दी, आगे से आपको आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपने आगे अमेंडमेंट कर दिया है तो इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता रहना चाहिए, पिछले वाले पीरियड में भी मिलना चाहिए। परंतु ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अभी ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया डिपार्टमेंट को। तो स्टे दे दिया, अगेन डीआरआई एक्टिव हो गई, उन्होंने सभी को सम्मन इशू करना शुरू कर दिया। तो ये जो एग्जेम्पशन था, ये गवर्नमेंट ने आईजीएसटी और कंपनसेशन का एग्जेम्पशन जो है 31 मार्च 2020 तक ही दिया था। अब उसको एक्सटेंड करके कोविड-19 के साथ पोजीशन को देखते हुए उसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी वाली प्रॉब्लम के लिए हम लोग लड़ ही रहे। और जो एडवांस ऑथराइजेशन में वैलिडिटी पीरियड था, अगर आप कोई इंपोर्ट करते हो, अगर उसका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो रहा है एडवांस ऑथराइजेशन का 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई तक, तो उसको 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो पूरा होना था वो 18 से 24 मंथ्स में होना चाहिए, तो अगर वो डेट जो है वो भी
1 फरवरी से लेकर 31 मार्च जुलाई तक हो रही है, तो उसको भी एक्सटेंड करके 1 फरवरी तक आगे कर दिया गया है। और ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक्सपोर्ट, जो आपकी वैलिडिटी पीरियड इसको बनाया है एडवांस ऑथराइजेशन में, अपने आप ही इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। परंतु उसमें कुछ 2 एक्सेप्शन है, वो भी एक सर्कुलर आया, उसमें 2 एक्सेप्शन दिए हैं, जो कल या परसों ही आया है सर्कुलर। उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर एक्सटेंशन आप अप्लाई करते हो, वो अगर आपने एक्सटेंशन पहले भी रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई कर चुके हो, तो फिर पोर्टल अलाउ नहीं करता है ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन। तो उसके लिए आपको ईमेल से या फिजिकली एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, तो जो कंसर्न रीजनल अथॉरिटी है आरए है, वो उसको एक्सटेंड कर देगा। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो लाइसेंस है वो नॉन ईडीआई पोर्ट का है, सपोज पिपावा पोर्ट का है या नेपाल पे जो पोर्ट है रक्सौल उस पे है, तो उस केस में वहां पे मैनुअल पोर्ट है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो उस केस में भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो उसको वो एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सपोर्ट जो एडवांस लाइसेंस की डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। और ईपीसीजी जो लाइसेंस है, ईपीसीजी लाइसेंस में हम अपन कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, तो उसमें भी जो है आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस का एग्जेम्पशन नहीं था। फिर बाद में जनवरी 2019 में उन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया, पर ये डेट जो थी 2020 तक थी, 31 मार्च 2020 तक। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। इसी तरह से जो वैलिडिटी पीरियड था ईपीसीजे लाइसेंस में, अगर इट फॉल्स अंडर द 1 फरवरी टू 31 जुलाई 2020, देन इट विल बी एक्सटेंडेड बाय अगेन 6 मंथ्स। और अगर जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड आपको है, मतलब सपोज आपका ईपीसीजे लाइसेंस में आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, और वो जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का फुलफिल करने की जो आपकी एप्लीकेशन लगानी है डीजीएफटी को, उसकी लास्ट डेट भी 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई तक फॉल कर रही है, तो उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी फॉर बाय 6 मंथ्स। और हमें ईपीसीजे लाइसेंस में 2 ब्लॉक पीरियड मिलते हैं। जो एप्लीकेशन आपको पूरा करना होता है, आप जो इंपोर्ट करते हो उसकी जो आपको ड्यूटी फ्री मिली है, जो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस आपने नहीं पे किया है, उसकी जो टोटल अमाउंट है उसके 6 इयर्स में आपको एक्सपोर्ट करना होता है। उसको फर्स्ट 4 इयर्स में 50% आपको पूरा करना होता है, और 5th और 6th पीरियड में आपको 50% पर पीरियड कवर करना होता है। अगर आपका ये ब्लॉक वाइज एक्सटेंशन की जो आपकी एप्लीकेशन लग सकती है उसकी भी, परंतु अगर ब्लॉक वाइज एक्सटेंशन की एप्लीकेशन अगेन इस पीरियड में फॉल कर रही है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी तरह से कोई एक्सपोर्ट पूरा आपका लाइसेंस भी एक्सपायर हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड, उसकी एप्लीकेशन आप लगा रहे हो तो भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देना होता है, जो आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो उसको 6 मंथ्स के अंदर आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देना होता है, डीजीएफटी को। परंतु आपने अगर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, और वो डेट भी 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए। पर इसको एप्लीकेशन को लगाने के लिए आपको 5000 की फीस देनी होती थी, अब इस केस में कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। ईयू के लिए भी एग्जम्पशन जो था वो कस्टम ड्यूटी से ही था, जीएसटी आया जब, उसमें आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस का एग्जम्पशन नहीं था। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 में उनको ये भी दे दिया, पर वो जो एग्जम्पशन था दैट वाज लिमिटेड अप टू 31 मार्च 2020। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ परमिशन जो मतलब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू करती है ईयू के लिए, उसकी भी वैलिडिटी पीरियड जो है अगर वो फॉल कर रही है इस पीरियड में, उसको भी 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसी तरह से जो ईयू होते हैं उनको एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना, क्यूपीआर, अगर वो मार्च एंडिंग और जून एंडिंग का जो रिटर्न है वो आप उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर तक। इसी तरह से एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है उनको फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, दैट हैज बीन अगेन एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2020।
इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अगर आप बहुत रिमोट एरिया में जैसे ईस्ट अफ्रीका में या कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको उनको एक ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट असिस्टेंस स्कीम मिलती है, जिसमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, उसको आप अप्लाई करके उसका रिफंड उसको स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। वो वाली जो है उसकी वैलिडिटी होती है, उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 ईयर। तो अगर कोई क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च और 30 जून को आपको अप्लाई करना था, उसकी जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी गई है। और इसमें जो TMI के एक्सपोर्ट के लिए फिजिकल कॉपीज सबमिट करना जरूरी है डिपार्टमेंट में, परंतु उसको भी रिलैक्स कर दिया गया है और उसमें कहा है कि भाई आप ऑनलाइन भी ये जो फिजिकल कॉपीज है ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है कुछ वेंटिलेटर और सैनिटाइजर्स जो है वो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं, इंडिया से उसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया गया है। और अब इसका एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कोविड-19 में इस सिचुएशन को डील करने के लिए, गवर्नमेंट उल्टा इसको इंपोर्ट कर रही है, तो इसका वेंटिलेटर्स का और सैनिटाइजर्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसी तरह से जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो है ना कोविड-19 जब से आया है काफी सारे नए टर्म्स एंड कंडीशन मिलती जा रही है। एक टर्म्स एंड कंडीशन आ गई कि भाई मतलब क्वारंटाइन, और एक आ गया ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये जो स्पेल आउट करना है, ये अब हमारे वाले एज वाले 50+ लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये चीजें नहीं स्पेल आउट करना। तो इसीलिए मेरे को भी ये दिक्कत हो रही है कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, ये इसका फॉर्मुलेशन भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये SEZ EU अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो वही कर सकते हैं, या फिर जो किसी ने इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट आपका इशू हुआ है और आपको 100% एडवांस या 100% एडवांस आ चुका है, उस केस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेगी। जैसे US प्रेसिडेंट ने इसकी डिमांड की थी, ट्रंप ने कहा था कि हम देख लेंगे अदरवाइज अगर आप नहीं देते हो, तो उसकी गवर्नमेंट ने उसकी डिमांड को मान लिया और उसको एक्सपोर्ट करने दिया। इसी तरह से मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट किया गया, परंतु अब उसका जो एक्सपोर्ट है वापस बैन कर दिया गया है। अब इवन गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है, नोटिफिकेशन 59 से ये बैन कर दिया, गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है कि वो केस टू केस बेसिस पे इस टैबलेट को एक्सपोर्ट कर सकती है। अब से इसका टोटली बैन रहेगा, और अगर इसको अलाउ करना है तो गवर्नमेंट को वापस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन 58/2015 में स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, एक SIMIS भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या था कि ये अक्टूबर 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ था ये स्कीम। इसमें क्या कि आपको एडवांस में इंटीमेशन देनी थी कि आप स्टील का कितना इंपोर्ट कर रहे हो, और एक फीस पे करनी थी गवर्नमेंट को 1 रुपीज पर 1000 with the subject to minimum of 500 rupees और maximum 1 lakh rupees। तो और इसके जो रजिस्ट्रेशन की पीरियड की वैलिडिटी थी वो 16 डेज थी, और इसको अप्लाई कब करना था, 16 डेज इंपोर्ट से पहले और 15 दिन बाद में, 75 डेज में ही अप्लाई करना था। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड है, अगर आप अप्लाई कर देते हो तो जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसकी वैलिडिटी पीरियड 75 डेज था। अब उसको एक्सटेंड करके इस वैलिडिटी पीरियड को 75 की जगह पे 135 डेज कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जहां पे भी कोई डेट इस पीरियड में फॉल हो रही है, उसमें गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है और उस डेट को एक्सटेंड कर रही है। इसी तरह से जो स्पेशल रिफंड और ड्राफ्ट डिस्पोजल ड्राइव चलाया गया है, जैसे एक्साइज की साइड में CGST और SGST डिपार्टमेंट भी रिफंड दे रहे हैं, परंतु एक इसमें दिक्कत आ रही है, डागा साहब से भी मैं टेकअप करना चाहूंगा कि CGST डिपार्टमेंट जो रिफंड है वो तो बहुत जल्दी दे रहा है, जो अपन रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, इवन वो इन्वेंटरी ड्यूटी का हो या वो, परंतु SGST डिपार्टमेंट से जो रिफंड्स हैं वो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, क्योंकि SGST डिपार्टमेंट अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके दिन लॉकडाउन है। तो जो SSC रजिस्टर्ड है CGST में, उनको तो रिफंड बहुत जल्दी आ रहा है, परंतु जो रजिस्टर्ड है SGST में उनको ये रिफंड नहीं आ रहा है। तो ये टेकअप करे, टैक्स बार एसोसिएशन इसको टेकअप करे, और ये रिफंड भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और जो कस्टम पार्ट्स पे जो रिफंड, और हाँ जी सर, will take up sir, will take up 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जो हमने देखा है कि हमारे कुछ SSC का रिफंड हमने अप्लाई किया और हमने SGST डिपार्टमेंट में परस्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑफिस है वो ऑपरेशनल नहीं है, जब हम ऑफिस जाएंगे तभी देख पाएंगे। परंतु जो CGST डिपार्टमेंट भी पीछे ऑपरेशनल नहीं था,
परंतु वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और वो रिफंड अप्लाई अलाउ कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि हमने फ्राइडे को रिफंड अप्लाई किया और मंडे को उन्होंने सैंक्शन कर दिया। और एक केस में तो संडे को मेरे को असिस्टेंट कमिश्नर का फोन आया कि आपका एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, इसको आप रिप्लाई कर दीजिए अभी के अभी, तो हम आपको रिफंड दे देंगे। मैंने कहा सर आज संडे है, आज तो रेस्ट करने दीजिए। कि जैन साहब हम तो रिफंड देने के लिए तैयार खड़े हैं और आप रिफंड लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैंने उसको फिर मैंने कहा सर मैं आज के आज आपको रिप्लाई देता हूँ, एंड मैंने संडे को रिफंड का रिप्लाई दिया शो कॉज नोटिस का, और मेरे को वो संडे को ही सैंक्शन कर दिया गया। तो सीजीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो काफी एग्रेसिवली इसको टेकअप कर रहा है, परंतु एसजीएसटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे डागा साहब ने इंश्योर किया है, तो ही विल टेक अप दिस मैटर विद द अथॉरिटीज एंड डेफिनेटली द सॉल्यूशन विल कम। इसी तरह से कस्टम डिपार्टमेंट ने भी एक स्पेशल ड्राइव लगाया है, जिसमें उन्होंने ड्रॉबैक का जो डिस्पोजल है वो फास्ट करेंगे। तो उसके भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, लिस्ट्स आ रही हैं, सभी लिस्ट हमें सर्कुलेट की जा रही हैं, और वो कहा जा रहा है कि भाई जिनके भी ड्रॉबैक पेंडिंग है वो आप ले लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप हमें बताइए, और हमें कोई चीज चाहिए तो डिपार्टमेंट हमसे मांग रहा है। तो वो एक ड्राइव चलाया गया कि 7 अप्रैल तक जितने भी शिपिंग बिल फाइल हुए थे उनका रिफंड जो है ड्रॉबैक का वो 30 अप्रैल तक सब दे देंगे। और इसी तरह से जो है आईजीएसटी का जो है उसका भी एक ड्राइव चलाया गया है, आईजीएसटी रिफंड का भी। अगर कोई भी एरर है अगर तो वो उसको हेल्प कर रहे हैं एसएससी को, और अप्रोच कर रहे हैं हर एक एसएससी को भी, ये आपका आईजीएसटी अटका हुआ है, आप इसको इस तरह से करें तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये है, परंतु इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो रिस्की एक्सपोर्टर्स हैं, रिस्की एक्सपोर्टर एक गवर्नमेंट फ्लैप लगा देती है और उसमें आपका एक फ्लैप लगा देती है, तो उससे आपके जितने भी वो है कंटेनर्स वो कट होते हैं और आपका जो रिफंड है वो रुक जाता है। तो परंतु इस जो पोजीशन में है, तो हमने अपने एसएससी को भी, जैसे डागा साहब ने मेरे को बताया था कि भी आपका भी एक रिस्की एक्सपोर्टर है, हमने उसको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा स्टाफ आ ही नहीं पा रहा है, तो हम डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करें। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो सबमिट नहीं होंगे तो ऑडिट नहीं होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका रिफंड नहीं आ रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि भाई ये जो रिस्की एक्सपोर्टर है ये स्कीम थोड़े दिन तक सस्पेंड कर दें, और जब ये लॉकडाउन की पोजीशन खत्म हो जाए तब आप उसको दे देना, मीनवाइल आप रिफंड जो है रिलीज करते रहें। तो ये मैं वापस डागा साहब से ये भी कहूंगा कि ये भी मैटर टेकअप करें, और ये जो ड्राइव है ये इसका ट्रू सेंस में बेनिफिट मिल सके एसएससी को, तो उससे ये हो सके। नेक्स्ट जो है उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं। कई जगह पे जो है एक्सपोर्टर्स को बॉन्ड इश्यू करने होते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने होते हैं कस्टम डिपार्टमेंट के साथ, तभी उनका जो है इंपोर्ट कंसाइनमेंट क्लियर हो पाता है। तो अब ये जो बॉन्ड अब सबमिट करने होते हैं, ये बॉन्ड उसके लिए स्टैम्प पेपर परचेज करना पड़ता है, एंड इट हैज टू बी नोटराइज्ड। सो इन दिस लॉकडाउन पोजीशन देयर इज नो वेंडर इज ओपन, even notary cannot be done, so how to submit the bonds with the department? So this matter was taken up with the custom authorities, and custom authorities came up with a solution. They said that you can execute a letter of undertaking in place of bonds, and but the language of the undertaking will be the same as of their bond. So for certain cases उन्होंने ये रिलैक्स किया है, तो दे नीड नॉट टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, दे कैन गिव द अंडरटेकिंग, एंड दिस कैन बी ऑनलाइन फाइल, मतलब ऑनलाइन ही आप फाइल कर दीजिए तो आपका इंपोर्ट कंसाइनमेंट इशू हो जाएगा। बट दैट हैज बीन क्लैरिफाइड, इफ बॉन्ड रिक्वायर्स सर्टेन सिक्योरिटी फ्रॉम द एसएससी देन इट हैज टू बी फर्निश्ड, सिक्योरिटी कैन नॉट बी रिलैक्स्ड। सो बॉन्ड और बैंक गारंटी, अगर बैंक गारंटी है तो बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, परंतु उस केस में ये नहीं होगा। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है, परंतु ये जो आपको अंडरटेकिंग देनी है वो अंडरटेकिंग पूरा बॉन्ड के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ड्यूली साइंड बाय आईसी होल्डर होनी चाहिए, और स्कैन करके आप फाइल कर सकते हैं, बट इट शुड कम फ्रॉम द ऑफिशियल ईमेल आईडी व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन द आईसी। Now we have taken up the matter again with the authority because IC was issued way back 10 years back or 20 years back, और अब उसमें कौन सी ईमेल आईडी थी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, और इवन अमेंडमेंट इन आईसी इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी
ईमेल आईडी से अगर हम ये अंडरटेकिंग सबमिट कर देते हैं डिपार्टमेंट को, तो दैट शुड बी टेकन, और उससे मेरा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट क्लियर हो जाए। अगेन ये जो है वेलकम स्टेप है कि उन्होंने बॉन्ड की जगह पे अंडरटेकिंग ले लिया और उससे क्लियरेंस भी शुरू कर दी है। इवन उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होगी उसके बेसिस पे ही आपका एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भी क्लियर कर दिया जाएगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर आपको कई कंट्रीज में रिक्वायरमेंट होती है कि वी हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटीज इन इंडिया, एंड अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोड्यूस करना होता है, बट देयर कोविड-19 की पोजीशन के कारण वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो गवर्नमेंट ने कहा देयर इज नो नीड ऑफ ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अनसाइंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मे बी सबमिट और डिजिटली साइंड कॉपी में भी सबमिट, तो उसको भी हम टेक केयर कर लेंगे, उसके बेसिस पे भी हो जाएगा। तो ये जो है ये भी वेलकम स्टेप है कि भाई ये भी कंडीशन को रिलैक्स किया गया है। और जो सीएचए हैं या इंपोर्टर हैं उनको भी कई बार पोर्ट पे जाना पड़ता है, उसके लिए द गवर्नमेंट हैज टू इशू गेट पासेस एंड फाइनल बिल ऑफ एंट्री। तो ये जो है उसमें भी एक प्रोविजन लाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गेट पासेस एंड बिल ऑफ एंट्री टू कस्टम ब्रोकर एंड इंपोर्टर विल बी इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया है। उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा गेट पास और आप जा सकते हो, और बिल ऑफ एंट्री भी उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हो, उसके बेसिस पे ही आपका मटेरियल क्लियर हो जाएगा। तो ये अगेन एक वेलकम स्टेप है कि जिसमें उन्होंने ये कंडीशन को रिलैक्स किया है। इसके अलावा जो है वेंटिलेटर्स और पर्सनल पीपीटी और फेस मास्क और सर्जिकल मास्क, और इसके ऊपर भी उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है गवर्नमेंट ने। बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस, और जो हेल्थ सेस और लगी थी पिछले बजट में उससे भी एग्जेम्पशन दिया गया है, बट इसमें से आईजीएसटी का एग्जेम्पशन नहीं है, ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी उसका ही एग्जेम्पशन है। इवन प्रीवियसली कुछ लोगों ने डिमांड भी की थी कि भाई हमें इसमें आईजीएसटी का एग्जेम्पशन भी मिले वेंटिलेटर्स में और फेस मास्क में, सर्जिकल मास्क में, परंतु ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी टाइम लगा दिया। अगर वो एग्जेम्पशन मिल जाता है तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो देन द गुड्स विल बिकम कॉस्टलियर। So that's why the trade and industry has demanded that we do not want any exemption, IGST and वो जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल रहे, तो हमें इसकी रिफंड नहीं चाहिए। अभी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जो अपन जो कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उसमें सीलिंग होती थी, एक्साइज पीरियड में सीलिंग बाय सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट भी होती थी और सेल्फ सीलिंग भी होती थी। लेटर ऑन जीएसटी में उन्होंने सेल्फ RFID सीलिंग करनी पड़ेगी, तो RFID डिवाइस होगा, उसको उससे आप सील कर दोगे तो उसमें डाटा फीड होगा कौन सा शिपिंग बिल है क्या है, तो जैसे ही कंटेनर एंटर होगा आईसीडी में तो वो स्कैन कर दिया जाएगा। परंतु वो जो वन टाइम लॉक है अभी उसकी लास्ट डेट 15 मार्च थी, गवर्नमेंट ने उसको भी रिलैक्स कर दिया है और उसकी डेट जो है 30 जून तक एक्सटेंड कर दी है। अभी ये जो RFID जो सीलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, 30 जून तक इसका एग्जेम्पशन है, तो यू कैन कंटिन्यू विद द ओल्ड सील्स आल्सो। हालांकि मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर हैज स्टार्टेड विद द RFID सीलिंग, बट उसके में भी रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपोर्टर से, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो SB 005 आपकी एरर आ रही है IGST के रिफंड में, उसमें गवर्नमेंट ने पहले भी काफी सारे SB 005 एरर क्या होती है, दैट इज एरर व्हेन whatever invoice number you are entering in GSTR1 return and the invoice number entered by you in the shipping bill, though both differs, then the error of SB 005 comes. Either the number doesn't match or date doesn't match. इनवॉइस नंबर और डेट किसी में भी एरर होती है तो वो SB 005 की एरर आती है। तो उसमें गवर्नमेंट ने अर्लियर आल्सो रिलैक्स किया था कि भाई इसमें जो SB 005 की एरर आई थी तो आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कस्टम ऑफिसर्स को, तो वो उसको रेक्टिफाई कर देंगे तो आपका रिफंड रिलीज हो जाएगा। अब उसकी डेट जो है इस सर्कुलर की और एक्सटेंड कर दी गई है टू द 31 दिसंबर 2019 तक। जो भी आपने शिपिंग बिल फाइल किए हैं उसकी भी आपको, अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं विद द कस्टम अथॉरिटी, तो वो भी उसका रिफंड दे देंगे। परंतु ये जो एरर है टाइम एंड अगेन कस्टम डिपार्टमेंट जो है वार्निंग इशू कर रहा है कि भाई ये जो है ये एरर आनी नहीं चाहिए, यू हैव टू फाइल
your GSTR1 with very careful manner and there should not be any error. But this error has been continued. So they have given us forwarded to many SSC that your SB005 error is coming, and if you apply, then the refund will be released. Then it is again a welcome step by the custom department. They are very keen to give the refund to the trade and industry, to the exporters, so that liquidity of the exporters are not hampered. Thank you. This is all with my presentation. अगर आपको कोई भी queries है, you can send me on the WhatsApp. The number is already forwarded by the Daga sir, and if we will keen to reply your queries. Even if some queries are not replied, we will answer it by mail also. So please mention your mail ID or your mobile number. Your mobile number will come to us. Your name should be mentioned along with the query so that we can reply to you. Thank you. रोहित सर आपके लिए. Thank you very much. Thank you so much, sir. I think query has been sent to you directly. If you have got any query, please you may start, sir. Okay, 1 minute. I am switched off my mobile. तो मैं एक बार देख लेता हूँ. हाँ. तो ये मैंने एक्चुअली क्या मेरे मोबाइल पे क्वेरी. हाँ जी. हाँ सर आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे ना, उसी नंबर पे हमने मेंबर्स को फॉरवर्ड किया था. आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे. हाँ जी. तो मैंने वो अपने भरत का मोबाइल नंबर दिया था, हमारे एम्प्लॉय है, तो ही विल फॉरवर्ड इट टू मी. तो मैं वो देख के आपको रिप्लाई कर देता हूँ. हाँ, 2 मिनट देख लीजिए आप. हाँ जी. थैंक यू सर. हाँ, एक क्वेश्चन सबसे पहले जो आया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस मेड इन रूल 42-43 रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक बताया था उस पे कि भाई इसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें मैं वापस बताना चाहूंगा कि भाई पहले क्या होता था कि 42-43 में जो था, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 1 लाख का मैंने वो मशीन खरीदी, उस पर 18,000 रुपए टैक्स लग गया. अब मैं उस टाइम जब मैंने 18,000 रुपए लिया तब मेरे पास, मैं टोटली एग्जम्प्टेड गुड्स बनाता था, तो मेरे को उसकी क्रेडिट मिली, तो मैंने क्रेडिट ली नहीं. परंतु 6 महीने बाद मेरा एक प्रोडक्ट और ऐड हो गया जो कि टैक्सेबल था. तो अब मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक टैक्सेबल है और एक एग्जम्प्टेड है. तो वो कहते हैं 18,000 में से आपको जो डेप्रिशिएटेड है, मतलब 5% पर क्वार्टर, तो जो है उससे 10% डेप्रिसिएशन मिल गया. तो 18,000 में से 1800 रुपए लेस करके 16,200 रुपए बचा. तो 16,200 रुपए डिवाइडेड बाय, पहले जो लॉ था वो ये था 16,200 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय एग्जम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर. ये अमाउंट मेरे को रिवर्सल करना पड़ता था रूल 42 और 43 में. परंतु ये गलत था, क्योंकि अगर कोई एसएससी शुरू से ही, सपोज मैं डे 1 से 18,000 क्रेडिट ले लूं, तो मेरे को और मेरे 2 प्रोडक्ट है, एक टैक्सेबल है और एग्जम्प्टेड है, तो मेरे को कैसे रिवर्सल करना था, 18,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय एग्जम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर. तो उस हिसाब से करना था. परंतु अब ये इसमें जो है ये इस तरह से आ गया, तो इसको गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि उसमें अब आपको 18,000 से डिवाइड करना है. और उन्होंने एक और इसमें अमेंडमेंट किया कि आपको क्रेडिट जो है वो 18,000 की लेनी है, परंतु रिवर्सल जो आउटपुट लायबिलिटी में 1800 ऐड कर देना है. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 1800 को ऐड करना. मेरे हिसाब से उसको अगर अपन 18,000 क्रेडिट पूरी ले लें और जो रूल 42-43 में रिवर्सल है उसमें 1800 जो पहले वाला पीरियड है उसको रिवर्स कर दें, और बाद में जो कैलकुलेशन करें हर महीने
वो है 18,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय एग्जीक्यूटेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया सबको? क्या रोहित साहब? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, whether condition of payment to be made in 180 days from the date of invoice to supplier is also deferred till 30th June 2020। मैंने अपने वेबिनार में भी बताया था आपको कि जो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन टू सेक्शन 16(2) उसमें दिया गया है, और ये एक्सेप्शन में नहीं है। जो 35 नोटिफिकेशन 35/2020 इशू हुआ 168A की पावर में, उसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि भाई ये किस किस पे लागू नहीं होगा ये प्रोविजन, उसमें ये एक्सेप्शन नहीं है। तो जो आपके 180 डेज वाली, मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में 180 डेज वाला अगर पीरियड है वो 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में फॉल करता है, तो उसकी डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी 180 डेज से, उस केस में भी 30 जून हो जाएगी। परंतु अगर आपका पीरियड जो है 180 डेज का वो पहले ही खत्म हो गया, सपोज जनवरी में भी हो गया खत्म, और आपको ये भी एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। पीरियड जो है वो 180 डेज फॉल कब करना चाहिए? 29 जून से नहीं, सॉरी 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में, तभी वो एक्सटेंड होगा 30 जून। During lockdown, I wanted to file GST return, but due to unavailable of DSC, I am not able to file। ये तो क्लैरिफाई हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि EBC से भी कर सकते हैं। कंपनी के केस में DSC जरूरी होता है, परंतु उन्होंने कहा है कि भाई आप इसको वो भी कर सकते हो। इसके अलावा Pradeep sir, I have a small query. हाँ जी, हाँ जी। This is not relevant with the recent amendments, but I want to ask one thing. Can we adjust 10% of that appeal amount we have to pay in advance to file appeal? Can we adjust it towards from our credit ledger, or we have to pay it separately? No, payment can be made from credit also। मतलब वो गवर्नमेंट ने पहले भी डिसाइड, जैसे प्री डिपॉजिट था, तो दैट कैन बी मेड फ्रॉम ये क्रेडिट आल्सो, तो ये आप उससे कर सकते हैं। तो पेमेंट करके फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। ओके सर, ग्रेट, थैंक यू। और हाउ टू सॉल्व SB 005 एरर, तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कैसे करना है। वो आप अगर एप्लीकेशन, या तो आप GSTR 1 में कर सकते हो, या फिर उसको कर देते हो, कार्तिक भरत को कहना कि वो भेज दे, क्वेरीज भेज दे। हाँ, और अगर इसमें जो है मतलब SB 005 को अमेंड करने का एक प्रोविजन तो ये है कि आप GSTR 1 जब नया फाइल करें तो उसमें जो गलती हुई है उसको जाके अमेंड कर लें। या दूसरा एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने और दिया है कि भाई आप इसमें जाके इसको अमेंड कर सकते हैं। किस तरह से कि भाई आप एक एप्लीकेशन लगाएं, उसके साथ GSTR 3B और 1 की भी कॉपी दें डिपार्टमेंट को, और फिर वो उसको देख के उसको अमेंड कर देंगे, तो उससे आपका रिफंड आ जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भी लग सकती है। एक्सपोर्ट एप्लीकेशन जो पीरियड है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया सब एसएससीज के लिए। हाँ, सब स्कीम्स में कर दिया गया। और सर प्रदीप सर, एक अमेंडमेंट आया जिसमें आपने डिस्कस भी किया कि HSN आपको मेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ ITC रिफंड, अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट का रिफंड। तो सपोज इनवॉइस हैज 10-12 HSN, तो वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी HSN। हाँ, वी हैव टू मेंशन बिल वाइज, वो डिटेल ले रहा है। तो HSN अभी हमने एक फाइल किया था अभी रिसेंटली, जो कि इस सर्कुलर के बाद में, तो उन्होंने डेफिशिएंसी मीमो के साथ रिटर्न कर दिया और उसमें कहा कि आपको इनवॉइस वाइज HSN डालना है। तो हमने कहा कुछ HSN हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि SSC ने मेंशन ही नहीं किया, और हम कैसे तो क्या कुछ HSN तो चलो आप ब्लैंक रख सकते हो, परंतु बाकी के आपको HSN सभी मेंशन करने पड़ेंगे।
आई थिंक वो सर्कुलर में भी आ गया सर कि वो जो HSN अगर मेंशन नहीं है इनवॉइस पे तो यू डोंट हैव टू मेंशन। हाँ बिल्कुल, पर फिर मेरी क्वेरी परंतु है कि इसमें एक दिक्कत है कि HSN वाइज मेरे को उन्होंने जो सर्कुलर में लॉजिक दिया है, उन्होंने कहा कि हम इससे पता लगा देंगे कि कैपिटल गुड्स क्या है या वो क्या है, परंतु मेरे हिसाब से ये तो नहीं है। सपोज एक मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, वो केबल खरीदा है 8544 के, उसके लिए केबल जो है वो इनपुट होगा, और जो दूसरा है सपोज एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या कहते हैं, सपोज प्लास्टिक पाउचेस बनाता है, उसने भी केबल खरीदी है अपनी फैक्ट्री के लिए, तो उसके लिए तो वो कैपिटल गुड्स होगा 8544, 85 चैप्टर कैपिटल गुड्स के लिए होगा, परंतु जो मशीन मैन्युफैक्चर है उसके लिए इनपुट होगा। तो इस तरह से इसको विजुअलाइज करना मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट पोजीशन होगी। उनको तो ये पूछना ही पड़ेगा कि हमने उसको, ये नहीं हो कि वो सब जहां पे भी 85 और 84 आया तो वो कहते हैं कि भाई हम तो इसको डिडक्ट करते हैं, तो उसमें फिर उस केस में काफी सारी अपीलें लग जाएंगी कि भाई ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स नहीं था। इवन कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर ही है, परंतु उसने जो है केबल जो है कोई मोटर जो है उसकी मशीनरी खराब हो गई, तो उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मशीन खरीदी, अगेन मोटर जो है 8501 में आएगी, 85 चैप्टर है, परंतु वो है क्या, वो तो कैपिटल गुड्स ही हुई ना, मेरे लिए तो वो इनपुट हुई क्योंकि मैंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में क्या है कि जो चीज कैपिटलाइज करते हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मैंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया क्योंकि ये तो एक स्पेयर से है, तो स्पेयर को मैंने उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है, तो वो इसके इस तरह से मेरे लिए इनपुट हुई, उस पर रिफंड अलाउड है। तो डिपार्टमेंट कहेगा क्योंकि ये 8501 में आ रही है तो हम तो उसको वो मानेंगे, तो ये एक तरह से लिटिगेशन को इंक्रीज करने वाला होगा। Yes sir, yes sir. And there is one practical difficulty which says that you have to mention HSN of each item. So suppose invoice have 10-12 items, so we have to mention all HSNs. हाँ, मतलब उससे भी वो एंट्रीज जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हम उसमें भी दिक्कत आ रही है कि भाई मतलब जैसे हम रिफंड क्लेम फाइल करते हैं, उसमें आउटवर्ड सप्लाई के भी जब अपन अप्लाई करते हैं तो B2B ही लेता है, B2C वाला तो लेता ही नहीं है वो। Yes, तो अब हम क्या करते हैं, उसके जो फॉर्मूला है उसमें B2C वाला भी इंक्लूड करके फिर उसको फॉर्मूला करते हैं, फिर वो शो कॉज नोटिस देते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं कि भाई ये पोर्टल पे ये फैसिलिटी नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिफंड देते हैं। तो ये जो HSN वाली है ये भी एक दिक्कत देने वाली है आगे चल के कि भाई क्या है। yes sir. अभी एक केस में हमारे भी उन्होंने क्या किया कि सीमेंट पे हमने क्रेडिट ली हुई थी, तो उन्होंने कहा सीमेंट पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि ये बिल्डिंग में यूज होता है। मैंने कहा साहब 10 बोरी सीमेंट ली है और ये मेरी फैक्ट्री है पूरी, तो ये एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है, उसमें यूज आएगा और आप हमारा अकाउंट दे सकते हो, परंतु हमने इसमें नहीं लिया। परंतु उन्होंने ना तो शो कॉज नोटिस इश्यू किया ना कोई बात की, उसको काट के डिडक्ट करके और रिफंड अलाउ कर दिया। अब उसकी अपील करना और वो करना अमाउंट क्वांटम देखते हुए बड़ी मुश्किल चीज होगी। हाँ जी, हाँ रोहित सर। You got the query? एक मिनट, और भी ओल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि वो आप अगर आपको वैसे तो 31 मार्च तक नई एलयूटी की वो ऑनलाइन ही सबमिट करना था, परंतु वो एलयूटी अभी सबमिट नहीं हो पाई काफी सारे एसएससीज की, तो हमने एक अपडेट से भी बताया था कि इसकी डेट भी 30 जून हो जानी चाहिए, परंतु अब उन्होंने बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि भाई अगर आप पुरानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मेंशन करते हुए एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में आपको नया वाला मिल जाएगा। सर एक क्वेरी है, ये जो रिफंड के केस में आया एक्सपोर्टर्स के केस में कि अगर आपको फॉरेन करेंसी नहीं वापस मिली है तो देन यू हैव टू रिफंड बैक द आईटीसी। हाँ जी, तो ये किस पीरियड के लिए है और किस पीरियड तक हमको कंप्लाई करना है? देखिए ये दिक्कत मतलब अभी तक तो रूल जो आया है वो अभी से आया है, तो मेरे हिसाब से रिट्रोस्पेक्टिव तो हो नहीं सकता, रूल ही अभी आया है तो उससे ही होगा। इसमें भी दिक्कत ये है कि मतलब बीआरसी जो है ऑनलाइन मिलती है आजकल डीजीएफटी की साइट पे। बैंक में अपन शिपिंग बिल मेंशन कर देते तो डीजीएफटी ऐप की साइट पे ऑनलाइन मिलती है, और आजकल ड्रॉबैक में क्या हो गया कि वो कस्टम पोर्टल और वो डीजीएफटी का पोर्टल आपस में श्रिंक है, तो मतलब आपस में टैली कर लेते हैं क्योंकि शिपिंग बिल का बीआरसी आ गई है, जिसकी नहीं आती उसी का नोटिस आता है। परंतु अब हमने अभी तक देखा कस्टम का पोर्टल और जीएसटी का पोर्टल आपस में टैली नहीं हुए हैं, तो इसमें फिर क्या होगा कि जब आप रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट से ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लोगे तब तो बीआरसी अपने आप लिंक हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अगर आप प्रोपोर्शनल रिफंड का लेते हो
अगर जाके सेंटर सीजीएसटी डिपार्टमेंट या एसजीएसटी डिपार्टमेंट में, तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम आएगी, वो कहेंगे कि भाई ये इससे लिंक नहीं हो रहा है, तो आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बीआरसी देनी पड़ेगी। और रिफंड का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन हो गया, तो इतनी सारी बीआरसी को अपलोड करना वो अगेन एक हरकुलस टास्क होगा। और सेकंड मेरे इस प्रोविजन पे भी डाउट है, क्योंकि उन्होंने रूल में ये प्रोविजन डाला है, सेक्शन कहीं पे नहीं कहता कि भाई आपको बीआरसी देनी है, रूल में उन्होंने डाल दिया कि आपको बीआरसी रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा सेक्शन ओनली ईजीएम तक रिस्ट्रिक्ट करता है कि ईजीएम दे दिया तो इज गुड इनफ, एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी यही है कि अगर एक्सपोर्ट गुड्स बाहर चले गए इंडिया से तब तो है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में मतलब क्लियरली है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है कि भाई आपका प्रोवाइडर इंडिया में, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है और फॉरेन करेंसी में रेमिटेंस आया है, उस केस में तो अपने को एफआईआरसी देनी पड़ती है। और सर्विस टैक्स के रिफंड में हम मैनुअली एफआईआरसी दे रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं, टीआरसी दे रहे हैं, परंतु इसके इसमें नहीं थी, तो अब अपने को और ये दिक्कत ज्यादा देगा क्योंकि रिफंड तो मिल चुका होगा हमें और बाद में आपको वो फाइल करनी है। सपोज एसएससी भूल गया फाइल करना, तो कई बार रिकवरी हो जाती है। ड्रॉबैक में भी हमारे ऐसे काफी सारे लिटिगेशन आए जिसमें रिकवरी हो जाती है, एसएससी भूल ही जाता है क्योंकि ड्रॉबैक तो मिल चुका है और उसने टाइमली और शो कॉज नोटिस और वो जो है ऑनलाइन सिस्टम, और एसएससी इतना अभी सेव ही नहीं हुआ है ऑनलाइन सिस्टम से, तो शो कॉज नोटिस मेल पे आके रह जाता है। तो ये सब दिक्कतें आएंगी, तो अपने को विजिलेंट रह के उसको एसएससी को गाइड करना है कि भाई इसमें आपको बीआरसी सबमिट करने की जरूरत है। हाँ जी, और कोई क्वेरी? इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एक और अमेंडमेंट किया है जो अपने को बहुत दिक्कत देने वाला है, वो है वैल्यू ऑफ गुड्स जो है उन्होंने 1.5 टाइम्स कर दी है। डोमेस्टिक में जितनी सेल हो रही है उसकी वैल्यू वो मानी जाएगी। और ये सिर्फ रिफंड अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपार्टमेंट से अनयूटिलाइज सैनवर्ड क्रेडिट का लेते हो, प्रोपोर्शनेट सैनवर्ड क्रेडिट वाला, उस केस में ही एप्लीकेबल है। और अगर आप ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करते हो उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है, इसके ऊपर भी चैलेंज हो सकता है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सेकेंडली आपने सिर्फ रूल में जाके उसको कर दिया, तो ये भी दिक्कत है। तो ये जो प्रोविजन है ये, और 1.5 टाइम्स ही क्यों, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, ये प्रॉब्लम देने वाला है क्योंकि डोमेस्टिक और सिमिलरली गुड्स सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब अब आप सोचें कि जो मैं डोमेस्टिक मार्केट में मैं थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का गुड्स बना रहा हूं और एक्सपोर्ट के लिए हाई क्वालिटी का भेज रहा हूं, तो वो दोनों सिमिलर माने डिपार्टमेंट ये कहेगा ये सिमिलर है, जबकि हम कहेंगे कि वो सिमिलर नहीं है क्योंकि उसमें काफी वैल्यू एडिशन हुआ है। तो ये भी प्रॉब्लम आने वाली है कि भाई इसमें कौन सा गुड्स कौन सा सिमिलर गुड्स होगा। और आइडेंटिकल गुड्स तो समझ आता था, पर उन्होंने लिखा सिमिलर गुड्स। आइडेंटिकल होता है वैसा का वैसा, जैसे मैंने एक पेन या टेलीफोन एक्सपोर्ट किया, मोबाइल एक्सपोर्ट किया, तो मोबाइल सैमसंग का भी हो सकता है, एप्पल का भी हो सकता है और किसी और का भी हो सकता है। वो सिमिलर तो हो सकता है पर उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब उस रूल को अप्लाई करना, इट विल बी ए मतलब अननेसेसरी लिटिगेशन को इनवाइट करना है। और न्यूमरेटर में उन्होंने उसको किया, टोटल टर्नओवर में उसकी वैल्यू को ऐसा नहीं कर रहे। टोटल टर्नओवर तो वही रहेगा जो एक्सपोर्ट गुड्स में आपने लिया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गुड्स। तो इसमें यू ही ऑटोमेटिकली हमारा कम हो गया रिफंड क्लेम। सपोज मेरा 100% एक्सपोर्ट भी है, उसमें भी कम हो गया डोमेस्टिक में थाउजेंड्स में और एक्सपोर्ट करोड़ों में, तो कैसे कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। नहीं, वो कह रहे वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे मैंने सपोज एक पेन एक्सपोर्ट किया, उसकी डोमेस्टिक में वैल्यू जो है 10 रुपए है और मैंने जो एक्सपोर्ट किया उस मैंने 100 पेन एक्सपोर्ट किए 100 रुपए की रेट से, तो उसकी वो 15 रुपए मानेंगे और 15 रुपए से कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह से करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब पूरी वैल्यू नहीं देखनी, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक कंसाइट में गया 10 पेन का और आप उसको 1000 रुपए वही अप्लाई कर पर पीस देखना होगा। मल्टीपल आइटम्स में सर कैसे होगा फिर वो? मल्टीपल आइटम्स में कैसे?
निकालना हर पड़ेगा का सिमिलर प्रोडक्ट देखा जाएगा, सिमिलर प्रोडक्ट। ओके और आइडेंटिकल इज ए डिफरेंट टर्म, सिमिलर इज ए डिफरेंट टर्म। और इस पे भी काफी सारा लिटिगेशन पहले भी हमने फेस किया, कस्टम वैल्यूएशन में भी। तो ये वाला वापस दिक्कत देने वाला है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल ही है, परंतु एक S10 है, एक A5 है, एक क्या कहते हैं सैमसंग का है, एक एप्पल का है, एक किसी दूसरे का है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। ठीक है सर, अगर क्वेरीज कंक्लूड हो गई तो वी कैन कंक्लूड दिस वेबिनार। इफ यू हैव गॉट एनी अदर क्वेरी। मेरे हिसाब से तो मेरे पास तो और कोई नहीं आई है, अगर आपके पास हो तो बताइए कुछ। नहीं सर, वी हैव कंक्लूडेड नाउ, so let's conclude then. Yes, thank you. With this information we can conclude, sir. Okay, sir. We are immensely benefited by the in-depth knowledge of Sri Pradeep Ji Jain. It is always pleasure listening to him. He has abundance of knowledge, so it is our pleasure to hear from him. Now I request our treasurer Praveen Ji Rathi to give vote of thanks to our learned speaker and to the participants of this webinar. Over to Praveen Ji Rathi. प्रवीण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, ऑडिबल। ऑडिबल है? हेलो। यस सर, ऑडिबल। According to some employees, we need many more support. थोड़ी क्वालिटी इनको आ रही है सर, थोड़ा सा पास रखें मोबाइल। According to some employees, we need many more support, more making more urgent than the of becoming team. So I am benefited to recommend even if people use the feeling the rate of this afternoon. On behalf of the Subscribe Association in all my own years, I would like to thank you to the vision. As we deliver such a knowledgeable lecture in different elements to GST custom point easier. In this lockdown situation, we raise the message that if we want, we can deliver our own knowledge in any situation of any. I would also like to bring all members of the active participation in gender institutions to gain knowledge in this pandemic. Without the help of our technical team, we would not be successful. I also think we will participate in new technology. At last, stay home, stay safe. Thank you. Rohit, please continue. Okay. Thank you so much, sir. We are truly benefited by your knowledge and your content. All our listeners wanted to see your webinar again can see it on YouTube, and we'll share your PPT also with them. And once again, thank you so much for your time and deliberation. We'll look forward to you again for some other webinars also. Till then, I request Coordinator Ashutosh Ji to please end this webinar. And thank you once again to all the participants of this webinar. Thank you.